Okay. Yes, Pawan, sorry about that. Could you please repeat the doubt? Hmm. यस सर। सर डाउट नहीं, मैंने अपनी स्टोरीज में ये नोटिस किया, जैसे कल लास्ट क्लास में आपने बताया था कि डिटेल्स डालनी है हमें स्टोरी में। Hmm. तो Yes. एक पिक्चर आई थी जो बंदा डूब रहा था Yes. और उसे बचाने के लिए गए थे, तो मैंने बस ये लिखा कि हमने वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द वाटर एंड टेक इट टू द हॉस्पिटल एंड कॉल देयर पेरेंट्स। तो ये ठीक है, नोटिस किया सर। ठीक है। तो क्या इशू है इसमें? कुछ नहीं सर, वो डिटेल्स कम लिख रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ कि उसे बचा लिया एंड ये that's it, ये देखो, नोटिस डीलिंग किया। विद द ऐसी पिक्चर्स जब आती है ना हमारे सामने, तो वी हैव अ पिक्चर विच रिक्वायर्स direct action, more or less, right? So if you are able to deal with the situation or the problem is clearly identified, ठीक है? अगर आप sequentially, if you can follow up on that, right, and you can solve the entire problem, that is also okay. That meets the need of the picture. Okay. Now the smaller details. Why do I say this? Because see, let's say if I give you an example that Shashank is someone who lives in Bangalore. Okay. And I say that he was taking a boat ride in the lake of Bangalore. Okay. Right. Now, realistically, I'm from Delhi. Fine. And I imagine that I am going to a lake which is in Delhi. So when I imagine, so the imagination would be more vivid when we talk about Delhi. Why? Because I have prior experience. ठीक है। अब मेरे को एक और चीज पता है कि उसके आसपास वेंडर्स भी होंगे लेक के आसपास। वाई? बिकॉज आई हैव सीन दिल्ली। फाइन। आई नो दैट देयर विल बी गुड कनेक्टिविटी, राइट? सो पॉइंट हियर बीइंग दैट in whichever places I've already been to, so there I have a more resourceful imagination. I can even utilize the resources that I would not be able to think of in any other situation. ठीक है। डिटेलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिटेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर ओन सेल्फ। ठीक है। Second perspective is that when the psychologist reads your story, right? So if you've actually done more detailing, so he has a perspective that okay, this person might have done this particular activity. Okay. So even if the thought and emotion might be missing at times, so details they carry the burden of making it a convincing story. I hope you understand. यस। ठीक है। इसलिए डिटेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। जस्ट वन मोमेंट। ठीक है। नेक्स्ट डाउट इज नवनीत। नवनीत पूछो। So I also had same doubt as Nischal that my stories are preconceived. And also, sir, my stories are going more towards the social work type of stories. Like even if the picture is normal, where I'm not able to identify the main action or like the photos that you said, abstract pictures. In those pictures, my actions are going towards like Samaj Sudhar and all that. So अच्छा, that is ओके, one thing that I noticed in my अच्छा, stories. ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, And ठीक है, ठीक है, समझा। तो ठीक है। तो एक बार हम निश्चल को से डाउट्स अभी दोबारा लेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑन दिस। देखो यार, द थिंग इज दैट if I have actually worked with a NGO, with an NGO, fine, and I have experience of the same, right? My mind will naturally go to the places or the rather the initiatives that I've taken when I was part of the NGO, right? तो समाज सुधार वाली जो बातें हैं ना, ये तभी समझ में आती हैं जब मेरा कोई एक्सपीरियंस है उसके अराउंड। ठीक है। अदरवाइज इट जस्ट साउंड्स लाइक बुलशिट, टू बी ऑनेस्ट, राइट? ठीक है। सो अगर एक्सपीरियंस है आपको, then I would implore you to write a couple of stories around it. Fine. And give sufficient details that, let's say, for example, Navneet was uh,
a corporate employee, fine, and he wanted to be of service to others, to humanity, humankind. Therefore, he was actively involved in the corporate social responsibility, okay, where he would interact with NGOs and help them out on the ground. Fine. So पहली चीज है practically हमने connect कर लिया life से, ठीक है. Thereafter, coming down to the smaller details, so on every weekend he used to visit the NGO and contribute in whatever project was ongoing. Fine. So in that sense, if I can proceed, then it's okay. You understand? Couple of stories I can write around this, provided I have some experience related to this. Okay. Now, on the opposite end of the spectrum, let's go. Okay. So, क्या अगर मेरे को NGO का like if I want to write a social based theme, do I have to necessarily have NGO experience? That is also not true. Fine. But आपके साथ क्या हो रहा है? आप majority of the stories you're writing in that fashion. ठीक है? And someone who does not have an experience of NGO would write 1 or 2 stories at max. एक आध story लिखेगा कोई बंदा. ठीक है? So that is acceptable. You understand? Right? But what you're doing is having a, देखो, आज हम बात करेंगे जरा साइकोलॉजिस्ट इंस्ट्रक्शन क्या देता है and what he expects out of the entire TAT sequence. Fine. So in that we will understand that imagination is a critical part. Fine. But the interpretation is on the basis, the majority of the interpretation is that a person would have had the experience of doing these things. Okay. Imagination ka, this again takes us back to the same thing कि operational themes हमें अपनी life related ज़्यादा लिखनी है. ठीक है. Visionary जो type की stories है ना, वो थोड़ी सी a few of them need to be there. ठीक है. नहीं भी है तो चलेगा. I know people who have gotten recommended in AFCAT attempts. ठीक है. By, and majority of the stories were operational in nature. ठीक है. Day to day life related. Innovative stories एक या दो लिखी थी hardly. Still they got recommended. Fine. तो जो ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जस्टिस कर पाएं. क्यों? क्योंकि देखो, एक फंडा याद रखना, जो रूलिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, द ब्रॉड प्रिंसिपल, इट इज मनसा वाचा कर्मणा. ठीक है. सो द स्टोरीज दैट आई टेल टू ऑल थ्री शुड बी द सेम एटलीस्ट, है ना, शुड हैव कोहेरेंस. राइट. तो अगर मैं इंटरव्यू में मैं एनजीओ रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ, तो व्हाई वुड आई राइट मोर एनजीओ बेस्ड स्टोरीज. फाइन. यू अंडरस्टैंड दिस? सिंपलिस्टिक फंडा यही है बस. ठीक है. ओके. क्वेश्चन इज निश्चल का के 2 डाउट्स थे, है ना. आई फॉरगॉट, सो क्विकली प्लीज जस्ट रिपीट. निश्चल, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, बताओ. अच्छा, बिफोर वी टेक हर डाउट्स, एवरीवन कैमरा चालू होने चाहिए भाई. ठीक है. आप मेरी क्लास में बैठे हो, कैमरा चालू नहीं है भाई, इट्स एन इशू. ठीक है. मेरे को नहीं पता आप खा रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो. फाइन. चलो. यस निश्चल. Am I audible, sir? You are. So my doubt was, how do we maintain a balance in the overall assessment of the TAT? Okay. I mean, in those 12 stories, how do we maintain a balance? And the second one was related to the innovative stories about the technical jargons. Are they necessary? And if they are, in any case, can it go against our favor in the assessment? देखो, there is certainly, see, like I said,
the biggest draw, I was reading a research paper. It was about the shortcomings of the selection procedure of SSB. Fine. It was given by the head of the DRDO, fine, the chief scientist. So the biggest drawback of the entire SSB procedure, selection procedure, तुम्हें पता है डिनोवो SSB आने वाला था, बात चल रही थी इसका, and it was actually proposed by the head of DRDO. You understand this? ठीक है, but in order to maintain the status quo, so it was not implemented, है ना, because a lot of coaching institutes would also go out of business, है ना, so there was a lot of lobbying happening, right? Anyway, point of the matter is that the very involvement of human beings in the assessment process makes it subjective. Okay, and that is exactly what was being proposed in de novo SSB. They were planning to make the entire psychological test computer based. Okay, so that at least everyone is subjected to the same parameters. Fine, or at least the interpretation is the same. Okay. So point here being that some psychologists would want to read more of innovative stories. हाई लेवल स्टोरी बनाओ, हाई आप एफपा वाले उसके पास पहुंचोगे, ठीक है, क्या नाम है, थम्बू राजन, है ना, वो बोले हाई लेवल चाहिए भाई, ठीक है. आप किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचोगे, वो बोले यार बेसिक ही लिख दे भाई तू, ठीक है, यू डील विद डे टू डे टास्क एफिशिएंटली, आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम हैप्पी विद दैट, राइट. So there is a diversity of opinion, and this is why I said the first thing in the class that I said there are some gray areas. There are some fundamentals and then there are some gray areas. ठीक है, so gray area में आता है ये कि innovative versus daily life. This is a gray area. ठीक है, proportion जो है ना, proportion is not decided. Fine, it is left up to the wisdom of the candidate. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ये भी डालो, थोड़ा ये भी डालो. You understand this? So that we make diversity. Okay. So that assessor को जो पसंद है वो देख के like assess कर पाए. Fine. That is the reason why I am saying, why I have said this. Fine. Okay. Just a moment. Yes. ठीक है. So Navneet, I hope that answers the question. Fine. Okay. Yes. Shubham. Sir, like whenever I start writing the story, so I have the thought that what I have to write. But within when I write 2 or 3 lines, I start thinking I can add that also. I can add that also. So like it is a lack of practice, or there is some word which you can say that It is the lack of use. planning. ठीक है. Okay, sir. तो क्या करता होगा ना, जैसे ही 4 मिनट स्टोरी राइटिंग स्टार्ट हुए, फटाफट लिखना चालू कर देता होगा, Yes, sir. है ना. इनफैक्ट तेरे को Yes. थोड़ा सा और टाइम मिलता ना और लिख देता, Yes, sir. ठीक है. दैट इज योर अप्रोच, राइट. Yes, sir. आई वुड डिस्करेज दैट. मैं क्या बोलता हूँ, 4 मिनट में ना आपको 4 के 4 मिनट नहीं लिखना, ठीक है. इफ आई हैव टू चॉप डाउन अ ब्लडी फॉरेस्ट, आई वुड स्पेंड मोर टाइम शार्पनिंग द एक्स फर्स्ट, ठीक है, and then chop down the forest, right. So out of all the 4 minutes that I'm allocated, I should not spend the entire 4 minutes writing down the story. Initially I should take slightly more time in order to, क्या होता है ना, देख, बिना सोचे समझे तू लिखना चालू कर देगा ना, तो तेरे दिमाग में एक पहला जो सबसे पहला आइडिया है, तूने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. 10 सेकंड लिखा तूने, उसके बाद एक और आइडिया आया, ठीक है, 10 सेकंड और लिखा, फिर एक और आइडिया आया. इट हैपेंस एंड यू गेट कंफ्यूज्ड. या तो कंफ्यूज हो जाएगा और तू एप्ट स्टोरी नहीं लिखेगा, फाइन, या तो फिर यू विल डिविएट फ्रॉम द ओरिजिनल, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन दैट यू रोट, बोथ ऑफ विच आर नॉट suitable for us, ठीक है. I say भाई टेक 30 seconds, let it sink, पूरा end to end एक बार देखो. क्या होता है ना, एथलीट्स जो होते हैं
एथलीट्स, अगर आप लोग लाइक यू नो इफ यू गाइस हैव एवर पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ टूर्नामेंट, ठीक है, athletes before they go into competition, they visualize themselves, right, competing, finishing the entire, let's say for example the run or whatever, fine. Visualization and affirmation hota hai ye, theek hai. So what we have to do is something similar. We have to plan from first line to the last line. We have to visualize what we are going to write. Thought and emotion क्या होगा, माइक्रो एक्शंस क्या दूंगा, कंक्लूड कैसे करूंगा, ठीक है, किस टाइप की स्टोरी होगी, क्या डिमांड है, ये सारी चीज, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जब तक आपको नहीं मिल जाते, डोंट पुट योर पेन डाउन, ओके, इसलिए तू प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है शुभम। सर लाइक यू सेड कि मेंटल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए पहले जो टाइम मिला है, उसके हाँ। बाद जॉट डाउन करना चालू करो, राइट डाउन करना चालू यस करो. यस But sir, if I end up the story, then there are some. Then we start thinking कि हम ये भी एडअप कर सकते थे, ये भी एडअप कर सकते थे, to make the story more और अच्छी बनाने के लिए देख यार, उसको. कोई एंड नहीं है फिर उसका, ठीक है, व्हाट डू दे वांट, डू दे वांट यू टू राइट अ नॉवल, नो, है ना, दे जस्ट वांट एन एप्ट रिस्पॉन्स, एप्ट, ठीक है, इट शुड नॉट बी द बेस्ट वन आउट देयर, शुड नॉट बी द वर्स्ट वन आउट देयर, दे वांट एन एप्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, जो सिचुएशन अराइज हुई थी उसके साथ जस्टिस कर दिया आपने, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब उसमें कई बार हम सिंपलिस्टिक स्टोरीज लिखेंगे, कई बार हम इनोवेटिव स्टोरीज भी लिखेंगे, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, हमें ओवरऑल प्रोपोर्शन लेके चलना है, इसीलिए 12 स्टोरीज जो है ना ये प्लान करना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि साइक मतलब स्क्रीनिंग में जो आ जाते हैं ना बंदे, कई बार कुछ बंदे काफ़ी स्मार्ट होते हैं, दे गेट रिकमेंडेड जस्ट बाय दैट, ठीक है, बट दिस इज व्हाई आई से कि साइक के लिए ना थोड़ी प्लानिंग रिक्वायर्ड है ना, यू नीड टू नो योर सेल्फ, यू नीड टू गिव एटलीस्ट अ फ्यू मॉक टेस्ट्स, ठीक है, 3 4 5 मॉक टेस्ट देगा ना, तेरे को खुद ही समझ में आ जाएगा भाई। Yes, sir. ठीक That है, is the thing. कि only there was one story in screening, so we can complete it. Okay. हाँ But in the TED, there are one, first, second, and third, and fourth story. We can do it. But after the fifth story, there is unconscious mind coming out. So इसमें फिर practice ही का problem है, I think. एग्जैक्टली And एग्जैक्टली sir, I प्रैक्टिस। have one more thing that I want to know from you. Sir, like you said that office stories and administrative stories. But sir, office stories अगर experience से related नहीं है, so we can prepare the micro actions like is there if there is a fire, so we can see that, or someone is getting electric shock, so we can prepare earlier that what we can do in if someone is getting electric shock हाँ, like CPR. 100%, 100%, 100%, why So not? we can make stories out of experience like Yes, getting yes sir. देखो, for that what you need to do is you need to list down the common uh, themes that are portrayed in the direct action kind of pictures, ठीक है, these are usually around drowning, ठीक है, fire, right, accident, okay, train accident हो गया, ठीक है, then there is mountainous वाला तो innovative में चला गया, ठीक है, but usually these 3 4 kind of situations are there, ठीक है, so इसके अराउंड आप थोड़ा सा गूगल कर लो, राइट, इवन बेटर वॉच सम यूट्यूब, Specific. वॉच सम यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, दैट विल गिव यू अ वेरी क्लियर, ऑडियो विजुअल जो रहता है ना वो दिमाग में रहता है, ठीक है, तो आप यूट्यूब का हेल्प लो इसके ऐसे केस में, है ना, बेस्ट है फिर तो, क्या दिक्कत है, ठीक है, Okay, तो okay, sir. उसमें हम प्री कंसीव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इस बात पे डिपेंड करता है ना, हाउ एप्ट इज द, or is the, or are the actions that I'm writing, are they meeting the demand of the picture that is being displayed, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है प्री कंसीव्ड है या नहीं है, बात समझ रहे हो, Yes, ठीक है, understood. is there 100% sure shot way
कि भाई मैंने मान लो प्री कंसीव स्टोरी लिख दी, राइट, साइकोलॉजिस्ट क्या बोल सकता है कि विद 100% एक्यूरेसी यार ये स्टोरी प्री कंसीव्ड है? नहीं बोल सकता, ठीक है, बिकॉज इफ आई एम स्मार्ट, इफ आई एम अ स्मार्ट पर्सन जिसको पता है कि कॉपी कैसे करना है, ठीक है, राइट, वही वाली बात है कि एग्जाम में हम कॉपी करते थे एक दूसरे का, है ना, बट एग्जैक्ट मैच हो गया तो जाहिर सी बात है बोलेंगे कि यार तुम दोनों आगे पीछे बैठते हो, है ना धप्पा हो गया, ठीक है, सो वी हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, राइट, एंड एक्शंस हम गैदर करके तो लेके जाएंगे, ठीक है, तो प्री कंसीव्ड होगी भी बट उसको पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि हम डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द कैच, आई वुड से, फाइन. So, iski, I mean, when we're in this discussion, I just want to bring in a small caveat to this. I mean, in all the conferences I've seen, in maximum of the TAT stories, I've seen this one particular picture, जहाँ पे there is like the old with a wheel, two wheels, there's a cannon type of a thing, right? वो होता है, and it's like a desert sort of a place, Yeah. and there are some footsteps and there's a person. Fair enough. And I've seen this in at least two conferences. I've seen this picture, like I've Same, seen yeah, it. I've also seen this. And iska, I mean, I want to understand in which category does it fall under? Like you told Innovative. two categories Innovative. yesterday. Innovative. Innovative. And this will come directly under the profession of? I would say archaeologist. क्या होता है ना कि देखो, archaeologists when they discover something, so usually, I mean, you know, if you've read about the discoveries of Harappan sites, and recently there was a I don't remember the exact name, but यूपी में ना कोई एक tribe discover हुई है, ठीक है, in which there was mass burials found, ठीक है, of warrior clan. It was a warrior clan, right? So historically India has been known to be a peaceful tribe जहाँ पे warrior clans नहीं मिलते थे, ठीक है, but recent very Sinoli is the name, ठीक है, so there was a show on Discovery Channel about this, right? Discovery Plus पे देखा था मैंने, so it's called Secrets of Sinoli. So recently even chariots have been discovered, fine. So point here is that whenever an artifact is found, so usually the entire area around it is surveyed, fine, for more remnants, okay, so we can cover it under that maybe, if you have some prior knowledge about this. Basically, it comes under innovative only, right? Which are those 2 or 3 unrelatable stories. Yeah. ठीक है, yes Harmandeep. Sir, I am not able to distinguish between administrative and OP stories. Like election fight करना भी OPS है क्या? And restoration work OPS है या फिर administration? यार there's a thin line between this, ठीक है, so elections fight करना अगर आप आपके PIQ से connected है, ठीक है, so I wouldn't say it would be a daily, it's subjective to be honest, है ना, depending on the individual, right? अगर मैंने इलेक्शन जनरल सेक्रेटरी के कॉलेज में फाइट करे हैं, ठीक है, एंड आई हैव वन, और मे बी आई हैव नॉट वन, व्हाटएवर बी द सिचुएशन, ठीक है, बट आई एम अवेयर ऑफ द एंटायर थिंग, फाइन, देन आई वुड से इट वुड बी मोर ऑफ एन ऑपरेशनल स्टोरी. व्हाई? बिकॉज मेरे को एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड पता होगा, ठीक है, आई कैन राइट वेरी गुड डिटेल्स, ओके, बट इफ इट्स समवन हु इज going for it from the perspective of, like, you know, who doesn't have any experience around this, ठीक है, so in order to make a compensation for the exact details as to what's happening, ठीक है, what I would like to introduce is maybe app से कैसे promotion करा, ये कैसे करा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात, add another dimension which adds more innovation to it, ठीक है, so it depends on the experiences, on the individual, ठीक है. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. लाइक एग्जैक्ट मेरी बात समझो, आप लोग क्या है ना, यू गाइज आर ट्राइंग टू डाइसेक्ट द हेयर, फाइन, बट मुद्दे की बात क्या है ना, पीपल हु डू गेट रिकमेंडेड, दे अंडरस्टैंड द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ठीक है. मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से इनोवेटिव चीजें क्या है, मेरे हिसाब से यार, इट्स ऑलवेज अबाउट योर डेफिनेशन, नॉट माई डेफिनेशन.
ठीक है, व्हाट इज इनोवेटिव स्टोरी अकॉर्डिंग टू यू? यू थिंक अबाउट दैट, राइट? मेरा क्या डेफिनेशन है भाई, वो मेरा डेफिनेशन है ना. एम आई गोइंग टू राइट द टेस्ट? नो. राइट? डेली लाइफ क्या है मेरी? भाई मेरी जो है वो है, बट क्या मैं आपकी जगह पे टेस्ट लिखने जाऊंगा? नहीं. आपके आपके हिसाब से होगा ना वो, राइट? यू गेट द सेंट्रल आइडिया. आप समझ रहे हो? दिस इज नॉट अ कोर्ट केस, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड. फाइन Sir, हरमनदीप. after I want to ask one question. हाँ. Okay, after this discussion today's class, I got confused about difference between clear cut difference between operational and other simple stories as you said. वही तो बात मतलब कर रहे हैं what भाई, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे. बात ही वही चल रही है अभी, हरमनदीप से भी वही मुद्दा चल रहा है. sir, let me give you example like if I'm organizing yesterday in the class you said run for a fundraise. Okay, so in every story we are doing something, we are writing actions. Okay, so is this an innovative story or an operational one? Because Uh, according to me, that if I depends on if my I'm experience. That depends on my experience. ठीक है, if I haven't ever organized a run for fun. म्यूट कर लेना यार, थोड़ा डिस्टर्बेंस है. ठीक है. तो मेरी बात समझो. इफ आई हैव नेवर ऑर्गेनाइज्ड अ रन फॉर फन, ठीक है, और एनीथिंग लाइक दैट, राइट, इट माइट बी एन इमेजिनेटिव स्टोरी फॉर मी. ठीक है. साइकोलॉजिस्ट इज एक्चुअली गोइंग टू लुक एट द PIQ. फाइन. वो देखेगा, वो इवेल्युएट करेगा, राइट? देखो मुद्दे की बात क्या है ना, आउट ऑफ 30 स्टोरीज, आउट ऑफ 30 कैंडिडेट्स, जो बंदा थॉट एंड इमोशन, आई हैड अ चैट विद द साइकोलॉजिस्ट. फाइन. तो ही सेड कि यार शशांक, अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में थॉट एंड इमोशंस नहीं लिख रहा किसी स्टोरी में, ठीक है, स्टार्टिंग की 3 स्टोरीज हम पढ़ेंगे, थॉट्स एंड इमोशंस अगर मिसिंग है, तो उसके बाद वी स्किप ओवर. Fine, because if this person is not willing to expose his thought process, then how can we evaluate whether or not he's a good fit? Right? मेरी बात क्या कहने की है कि हम थॉट एंड इमोशन अगर सही से लिख रहे हैं, अगर आप इनोवेटिव नहीं लिख रहे हो, तो व्हाट विल कम टू योर रेस्क्यू? थॉट एंड इमोशन ऑलवेज. ठीक है. थॉट एंड इमोशन अगर मैं हर स्टोरी में डाल रहा हूँ, फाइन, और रादर वाई, जैसे कि कल हमने डिस्कस करा था, आई होप यू गाइस, हाँ एग्जैक्टली, वाई इज रनिंग, राइट, अगर मैं वो डाल रहा हूँ, ठीक है, ही विल ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन माई डॉजियर, ही विल लुक एट द PIQ इवन, ट्राई टू मैच, है ना? मेरी एक बात समझना, देयर इज एन 80-20 रूल. ठीक है. 20% ऑफ द पीपल, और रादर एक्चुअली क्या होता है ना, कभी भी आप इस पे ना, अब देखो मेरे को वो नहीं चाहिए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए इसका. मोटा मोटा क्या होता है कि हमारे बैच में भी क्या होता है, 20% पीपल गिव 80% रिजल्ट, 80% आउटपुट. ठीक है. दैट इज द लॉ ऑफ एवरेजेस. फाइन. हमारे साथ, आई मीन यू नो मैटर वेयर यू अप्लाई दिस, ठीक है, 20% ऑफ द पीपल कॉन्सेंट्रेट हैव 80% ऑफ द वेल्थ, राइट? G20 में 80% ऑफ द इकोनॉमी is concentrated. You understand this, right? मुद्दे की बात क्या है, अगर मैं 100 बंदों का डॉजर इवेल्युएट कर रहा हूं, तो उसमें मेरे को 20 बंदे ही काम के मिलेंगे. ठीक है. मेरे को वो जल्दी फिल्टर करना पड़ेगा. आपको साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझनी है. मेरे को वो जल्दी फिल्टर करना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट आई कम टू दोस 20 कैंडिडेट्स हु आई एक्चुअली वांट टू इवेल्युएट क्लियरली. ठीक है. और उसमें से भी 20% ही बंदे होंगे जो एक्चुअली रेकमेंड होंगे, who are worthy. Fine. So I hope you understand, the psychologist will resort to some shortcuts. ठीक है. तो यार इनोवेटिव क्या है क्या नहीं है, क्या है इसका कोई फर्क पड़ता है? नहीं. इनोवेटिव मत लिख भाई, मत लिखो इनोवेटिव. But doing justice to what experiences I've had in life, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मेरे लिए इमेजिनेटिव क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या है इमेजिनेटिव, वो भाई वो जाने ना यार, क्या हमें इस पे रिसर्च करना है, क्या हमने रिसर्च पेपर लिखना है इस पे, नहीं। ठीक है, क्या हमने इसमें रिसर्च करना है, नो। यू अंडरस्टैंड दिस? सो मुद्दे की बात इतनी है बस कि इनोवेटिव मेरे हिसाब से होगा, ठीक है, इफ आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग एंड इफ आई डू समथिंग न्यू, दैट इज इनोवेटिव, सिंपल। ठीक है, क्लियर है आर्यन? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि वो कोड वाला केसेस फॉर एन इंजीनियर इट वोंट बी एन for an engineer it will be like an unrelatable story which is innovative, whereas for a law like jag entry person it will be like an ops sort of हाँ story. एग्जैक्टली है ना, कोई जैग एंट्री के लिए जा रहा है, वो लॉयर बेस्ड स्टोरी लिख रहा है जिसका सेंट्रल कैरेक्टर लॉयर है, फाइन, सो इट विल बी अ डेली रूटीन स्टोरी फॉर हिम, राइट? बट बीइंग एन इंजीनियर, इफ आई एम राइटिंग फ्रॉम अ लॉयर्स पर्सपेक्टिव, इट विल बी इनोवेटिव फॉर मी, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट यार। ठीक सर है, सो हाँ इनोवेटिव स्टोरी जैसा हमने अभी डिस्कस किया ना, तो एज पर माय करंट लाइफ रूटीन या जो भी पास्ट में तब अब तक रहा है, सो आई कैन राइट मोर और केस स्टडीज ऑन वेरियस कंपनीज। जैसे अभी फिलहाल में वी आर डूइंग केस स्टडी ऑन एआई, हाउ कैन वी इंड्यूस इट इन आवर बिजनेस, एंड केस वी आर राइट नाउ रिसर्चिंग ऑन राजस्थान एंड हरियाणा स्टूडेंट्स का क्या बेस है मैथ्स और इंग्लिश को लेके। So this could be a innovative story from my end. इट कैन बी, इट कैन बी। देखो इनोवेटिव स्टोरी क्या जरूरी है कि उससे लिंक्ड हो, नहीं। इनोवेशन इज समथिंग व्हेन आई एम आल्सो इम्प्लीमेंटिंग न्यू सिस्टम्स, ठीक है, कुछ मैं नया करने निकला हूँ यार, वो इनोवेटिव हो गया ना। ठीक है, जो मेथड्स मैंने पहले ट्राई नहीं करे, अगर मैं वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो भी इनोवेटिव हो गया। जरूरी नहीं है कि मेरे को अपने प्रोफेशन से बाहर जाना है ना। मैं अपने प्रोफेशन से बाहर गया, वो तो होगा इनोवेटिव, राइट? बट उसके अलावा अभी मैं अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी कुछ नए सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, दैट विल ऑल्सो बी इनोवेटिव। इनोवेटिव का कोई डेफिनेशन है यूनिवर्सल नहीं है, इट इज लेफ्ट अप टू द विजडम ऑफ द कैंडिडेट, यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, आपके एक्सपीरियंस डिसाइड करेंगे यार इनोवेटिव क्या होगा। इफ आई हैव इंटरेस्ट इन सम एरिया, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा उसके, मतलब मान लो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है उसके बारे में, बट मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में, मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ, इनोवेटिव होगा? हाँ होगा, ठीक है, राइट? क्या मेरे को किसी को पॉइंट प्रूव करना है? नहीं, है ना? ठीक है, आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन, राइट? Sir, I had a doubt about this preconceived idea about a story. How do we define preconceived ideas and normal or natural ideas? प्री कंसीव्ड जब तब होगा ना यार, जब देखो मिसमैच होगा पिक्चर के साथ, दैट इज सिंपली द क्राइटेरिया फॉर प्री कंसीव्ड स्टोरी। ठीक है, पिक्चर बोल रही है मेरे को OLQ आपके फैक्टर्स 2 दिखाने हैं, मैं दिखा रहा हूँ फैक्टर 1, ठीक है, जो डिमांड है जब मैं नहीं मीट कर पा रहा हूँ इन माय एक्शंस, दैट विल बी प्री कंसीव्ड। इस पे आएंगे हम अभी, ठीक है, माइक्रो एक्शंस वाले पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यस दीपिका? Yes, sir. Whenever I see a picture, so sir, I correlate with that picture and I write the story. Okay. And as Aditya mentioned that he doesn't mention the OLQ, so the same problem is with me. Yes, when I read that story after some time, I found that yes, there is some OLQs, but I don't think like कि मैं OLQs के बारे में सोच के लिख रही हूँ, मुझे जो लगता है मैं उसको डायरेक्टली लिख देती हूँ। एंड द सेकेंड थिंग इज सर, समटाइम्स इट हैपेंस दैट कि मैं क्योंकि हर पिक्चर पे खुद को कोरिलेट करती हूँ, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे मैंने वो चीज़ फेस नहीं की होती अपनी लाइफ में, या मैंने वो देखी नहीं है, तो उन स्टोरीज पे मेरे लिए लिखना काफी मुश्किल हो जाता है कि मैं किसके पर्सपेक्टिव से लिखूं। सो ओके, सर, ओके, रिजॉल्व दिस। ठीक है। सो अभी हम इस पे आएंगे, थोड़ा सा धीरे से आएंगे। आई थिंक कल वाली क्लास में हम इस पे डिस्कस करेंगे, फाइन, विच इज टैट में क्या हमें प्रिंसिपल, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ टैट।
ठीक है, तो उस पर जब हम आएंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप लेट्स से, could you repeat the question? I think I missed it partially. यस सर, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैं OLQs के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं डायरेक्टली जो मुझे लगता है मैं वो लिख देती हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज, क्योंकि मैं हर पिक्चर पे खुद को कोलेट करके लिखती हूँ, तो समटाइम्स इट हैपेंस दैट जो सिचुएशन मेरे सामने पे है मैं उससे कोलेट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसमें किस तरह से उसको हैंडल किस करूँ? तरीके से और अप्रोच करूं? देखो, अप्रोच किस तरीके से करना होता है ना, इट्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर विच इज वायबल। ठीक है, आपको कैरेक्टर डूज एंड डोंट्स में हम जब देखेंगे तो एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो हमारी एज का हो। Yes, sir. Actually, that was a picture like in the TED session that there was a lady and it was around 30 or 32 and there was a little girl which was crossing the road. So उस पे मैं relate नहीं कर पाई खुद को कि मैं उस पे कैसे story बनाऊं. So I made that lady mother of that and after that I correlate with that जरूरी, story. देखो जरूरी नहीं है मदर ही हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ना डिटेल डिस्कशन रहेगा, ठीक है। तो हम इस पे ज़रा आएंगे थोड़ा सा बाद में, ठीक है, बिकॉज आज का हमें भी लाइक यू नो वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, राइट। आज डाउट्स वैसे भी थोड़ा सा लंबे चल गए, ठीक है। विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट बिकॉज हम आने ही वाले हैं इस चीज़ पे, है ना। ठीक है दीपिका, ओके, यस अनिकेत। सर आई जस्ट वांटेड टू समराइज द एंटायर थिंग कि मेरा जो इस पे समझ बना है अभी तक, इज इट करेक्ट और नॉट? आप पॉइंट आउट कर देना जहां मैं थोड़ा सा अगर कुछ मेरी समझ में गड़बड़ आई है अभी तक मैं क्या समझाऊं। सो बेसिकली वी हैव टू राइट 3 काइंड ऑफ स्टोरीज, एक डेली लाइफ पे, दूसरा थोड़ा ऑपरेशनल इमरजेंसीज पे, एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में कोई, एंड तीसरा इनोवेटिव है। दिस इज नॉट नेसेसरीली ट्रू कि आपको यही लिखनी है, दिस इज इन ऑर्डर इफ यू वांट टू स्कोर मार्क्स। अगर आपको इसके अकॉर्डिंगली आइडियाज नहीं आ रहे हैं तो मत लिखो, डेली लाइफ पे लिख दो, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके। एंड द डेली ऑपरेशनल लाइफ और स्टोरीज ऑपरेशनल और डायरेक्ट एक्शन का जो है ना ओवरलैप है, ठीक है। कई बार हम डायरेक्ट ऑपरेशनल चीजें अपनी डेली लाइफ में भी कर रहे होंगे। ओके, एंड द डेली लाइफ स्टोरीज नीड टू बी, मतलब अगर जरूरी नहीं है आपने वो एक्सपीरियंस करी हो चीज, बट इफ पॉसिबल आप उसको अपने एक्सपीरियंस से रिलेट कराओ। नहीं, ये पॉसिबल नहीं। डेली लाइफ वाली जो है ना वो आपके एक्सपीरियंसेस से ही रिलेटेड होंगी। ओके, डेली लाइफ वाली जो होंगी एंड यूजुअली आपके एंड एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होंगी, हाँ, 90% ऑफ द सो टाइम्स। ओके, एंड द इनोवेटिव स्टोरी नीड्स टू बी इमेजिनेटिव एज वेल एज द ऑपरेशनल स्टोरी, वो भी आपने सिचुएशन हो सकता है फेस ना करिए। ऑपरेशनल या डायरेक्ट एक्शन होगी, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन में मतलब अपने को एक सिचुएशन दे रखी है, वो डील करना है उसका, है ना। देयर इज नो अदर ऑप्शन, करेक्ट। सो हम क्या कर सकते हैं उसके अराउंड कि हमारा जितना मतलब लाइक यू नो वी कैन लुक एट सम पिक्चर्स एंड व्हाट आर द रिपीटेड काइंड ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। तो उसके अराउंड हम प्रिपेयर होके जा सकते हैं। ओके, सो पिकिंग अप सेंट्रल थीम्स फॉर द पिक्चर, जैसे मुझे डोर नॉब का नहीं पता था उसका अपॉर्चुनिटी मतलब होता है, तो मैं इंटरनेट पे सर्च कर सकता हूँ कि भाई इसका सेंट्रल थीम क्या होता है। लाइक आई कैन लुक एट सम एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर्स दैट आर नॉट रिपीटेड इन द नेसेसरली, एसएसबी। नहीं यार, यहीं पे तो गड़बड़ हो रहा है, पता है। हम क्या कर रहे हैं ना कि हम वी आर रेफरिंग टू गूगल, ठीक है। वी आर आई मीन यू नो आई एम सॉरी आई गॉट इरिटेटेड, ठीक है। आज मेरे को इतना मतलब क्योंकि लोग पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर ब्रेन्स, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ यू। इनोवेटिव क्या है यार, मेरे हिसाब से होना चाहिए ना इनोवेटिव, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी तूने क्या रेफरेंस करा था, किस चीज का रेफरेंस करा था? सेंट्रल थीम्स, नहीं सेंट्रल थीम्स के बाद इंटरनेट से, गूगल से। गूगल किस चीज के लिए कर रहा है? डोर नॉब, अपॉर्चुनिटी, सेंट्रल थीम्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग तेरे को गूगल क्यों करना है भाई? सर अपॉर्चुनिटी वो का डोर मीनिंग नॉब से जैसे डोर नॉब यार। एब्स्ट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी थीम्स। फॉर मी इज एन इंटरव्यू। मेरी लाइफ में क्या इंटरप्रिटेशन है अपॉर्चुनिटी का? व्हाई डू आई हैव टू गूगल अबाउट इट? ठीक है, बिकॉज सी टेस्ट में जब बैठा हूँगा मैं तो मेरे पास नहीं है, एक्सेसिबल होगा ये सब, है ना। देन द माई इंटरप्रिटेशन वर्क्स फाइन। तो हमें आज से ही अपनी इंटरप्रिटेशन पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है ना, ओके, राइट। तो व्हाट डू आई इंटरप्रेट इट एज फाइन कि अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में क्या है? अपॉर्चुनिटी माइट बी अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर मी इफ आई एम अ डिफेंस एस्पिरेंट, और लेट्स से फॉर एग्जांपल
someone who is preparing for government services, right? मेरी opportunity वो होगी, ठीक है? If I'm a businessman, my opportunity would be a new client. Fine. If I'm a someone who's seeking a job, it would be a new job interview. Fine. Do I have to Google this? No. Innovative मेरे लिए क्या होगा? ये सोचो ना यार. The entire psychology is based on your perspective. Thought and emotion सर के हिसाब से मेरे को याद करना है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से होगा ना भाई. ठीक है? This is the simplistic point that I'm trying to make here. और तभी तो अदरवाइज मैं आप लोगों को सबको बोल दूंगा कि यार थॉट एंड इमोशन ये लिखना है इस स्टोरी में. मैं फिर आई माइट एज वेल जस्ट टेल यू द मॉडल स्टोरी. ठीक है? तो फिर सारे बंदे वैसी स्टोरी लिखेंगे, तो डिफरेंस क्या रहेगा? So what you're trying to say is कि ये तुम ऐसा अगर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आता है तो तुम्हें कुछ इनोवेटिव लिखना है, पर दैट कुड बी इनोवेटिव फॉर मी एंड नॉट फॉर यू. हाँ, अगर एग्जैक्टली ऐसा कुछ एब्स्ट्रैक्ट, हाँ एग्जैक्टली है ना. I get it. इट माइट बी Understandable. इनोवेटिव फॉर यू बट नॉट फॉर मी. ठीक है? Okay. That might be daily action for someone like, let's say, for someone who is going for the JAG entry. और मेरे लिए वो शायद हो सकता है imaginative. नहीं हो, Okay. है ना. And the rough framework of the story would be thought and emotion, planning, action, challenges, solution, and result. हाँ. Rough framework. हाँ, अभी Okay. बात करेंगे इस पे. इंस्ट्रक्शंस की बात आज करनी थी, है ना. ठीक है? Thank you, sir. That's it. श्योर ग्रेट. ठीक है. यस अक्षत. यस सर, गुड इवनिंग सर. मेरा डाउट ये था कि जैसे आपने बताया कि यस इनोवेटिव स्टोरी शुड बी 2 or 3 और नॉट मोर देन दैट, एंड 2 or 3 will be a direct problem, and 5-6 will be neutral stories which problem is not directly visible. So sir, if we are राइटिंग द स्टोरीज, तो सर वो भी तो इनोवेटिव ही पॉइंट पे ही जा रही है ना सर. अगर हमने, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं कितनी स्टोरीज उसमें इंजीनियरिंग मतलब काइंड में घुसाऊँ और मतलब लिखूँ, एंड उसके बाद जो है फिर वो तो सारी इनोवेटिव में चली गई अगर मैंने फील्ड चेंज करा तो. मैं समझा नहीं मेरी बात. दोबारा सर बताना आई एम पड़ेगा. ट्राइंग टू से दैट you have told us that 2-3 will be unrelatable story, that mountain and something like. तो it is like our interest that कि हम क्या मतलब देखते हैं, हमारा और भी फील्ड्स में इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो तो चीज़ें वहाँ पे चली गई. इट इज इनोवेटिव स्टोरी. बट जो 5-6 स्टोरी जो न्यूट्रल है, जिसमें डायरेक्टली प्रॉब्लम जो है विजिबल नहीं है, तो अगर हम उसमें कुछ इनोवेशन कर दें, मतलब अपना फील्ड चेंज कर दें, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, मैं किसी और फील्ड का ले दूँ, तो सर वो भी तो इनोवेटिव में ही चला गया ना सर. मतलब मैं समझा नहीं, तो उससे फर्क क्या पड़ा? नहीं तो सर मतलब लिख सकते हैं क्या? मेरा पॉइंट ये लिख ऐसा सकते लिख हो यार. सकते हैं. आपके ऊपर है. ठीक है? सो इट्स अबाउट इमेजिनेशन. बट देखो होता क्या है ना कि आप मेरी बात समझो. आपको स्टोरी क्या बतानी है? आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को क्या बताओगे स्टोरी? उसके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए ना. सही, ये वाली बात है. अच्छा. ठीक है? राइट. सो तो सर मैं इट वुड. हाँ बोलो. तो सर मतलब जैसे मैं इंजीनियरिंग का हूँ, तो सर मैं उसमें कितनी स्टोरीज सर इंजीनियरिंग पॉइंट पे लिखूँ, एंड मतलब सारी लिख सकता और है, बट कितनी देन वैसे भी फिर अदर. पैटर्न बन जाएगा. सारी लिख सकता है तू लिखने को. ठीक है? बट फिर पैटर्न बन जाएगा कि यार द पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक आउटसाइड ऑफ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव. ठीक है? ही इज नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड दैट. ही इज टू यूनिडायमेंशनल. Pattern recognition always works. It is constant, one constant that every psychologist will agree on. ठीक है? Maybe I might have to diversify कि यार कहीं पे मैंने उसको स्पोर्ट्स वाला बैकग्राउंड दे दिया. ठीक है? कहीं पे मैंने उसको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स वाला बैकग्राउंड दे दिया. ठीक है? कहीं पे कुछ दे दिया, कहीं पे कुछ दे दिया. यू अंडरस्टैंड? डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है. डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है? क्योंकि हमारी लाइफ जो है ना, लाइफ हैज़ बिन फुल ऑफ एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. अगर नहीं रही है तो फिर देन यू नीड टू डाइवर्सिफाई. ठीक है? ओके सर. ओके. तो हमारे पीआईक्यू में जितने भी हमारे डाइवर्स एक्सपीरियंसेस और फील्ड्स हैं, हमें उसमें से मैक्सिमम इंक्लूड करनी है स्टोरीज में. हाँ, as far as possible.
as far as possible. ठीक है. हाँ. Yes, Falguni, you have a question. Yes, sir. A couple of questions. So, sir, ये जो इनोवेटिव आइडिया वाला जो है ना, मतलब कोई भी एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर आ सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें रिलेटेबल ही लगे. तो उस पर ही वी कैन मेक इनोवेटिव स्टोरी, विच इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार. क्या और 100% इनोवेटिव ही बनाना है? नॉट नेसेसरी. ठीक है, आप नहीं, डेली नॉट लाइफ भी बना नेसेसरी. सकते हो, है ना? हाँ, मतलब वो अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया डोर नॉब का. अब इस हाँ. पे डेली लाइफ से तो क्या ही लिख सकती हूँ मैं इस पे. नहीं लिख तो सकती, क्यों नहीं लिख सकती है? डेली लाइफ से क्यों नहीं? डेली लाइफ से रिलेटेड भी लिख सकते हैं. सेम चीज मतलब जैसे डोर नॉब से मेरे दिमाग में आइडिया था कि वो अर्ली मॉर्निंग रनिंग पे जा रहा है या फिर किसी को होम ट्यूशन देने जा रहा है. तो पर सर इसमें एक डाउट मुझे ये है कि उसका उसका बिगर एम क्या है. एज यू सेड व्हाट इज द वाई, कि मतलब डेली तो रन करता ही है वो, डेली होम ट्यूशन पढ़ाने भी जाता है. तो इज इट ओके टू राइट अ सिंपल स्टोरी दैट डजंट शो व्हाट इज द उसका बिगर एम. देख, उसका आंसर भी तू ही देगा. अब जैसे तेरे दिमाग में आइडिया आया, ठीक है, कि वो डेली रनिंग में जा रहा है, डेली पढ़ाने में जा रहा है. क्यों जा रहा है? मे बी ही इज प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन. और तो फिर पढ़ाने क्यों जा रहा है? पढ़ाने के लिए सर टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, टू अच्छा, why does सपोर्ट he want to earn extra money? टू सपोर्ट Support, हाँ, himself, and his to family, get है ना, his and to be. expenses. बस इतना ही है, बस इतना ही है. ठीक है, he Okay, wanted sir. to earn some extra money in order to be independent. ठीक है, as well as he wanted to keep himself physically fit. तो भाई दो चीजें बैलेंस कर रहा है, बस इतना ही है. क्या है सर इसमें? तो There's no लड़कियों rocket की जो science. अक्सर पिक्चर्स आती है ना वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल होती है, जैसे आपको पता है. हाँ, तो अब वो न्यूट्रल पिक्चर्स होती है, तो इस पे हम या तो डेली बेसिस पे लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर हम हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बेसिस पे लिख सकते हैं, देख सकते हो. यस, यस. न्यूट्रल है ना. पिक्चर्स में भाई देखो, न्यूट्रल पिक्चर में ना प्रॉब्लम डायरेक्टली नहीं दे रखी है ना. एग्जैक्टली. तो हमें पहले अपनी लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि हम लाइफ में कैसे प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. क्योंकि अगर मैं चैलेंजेस क्या फेस कर रहा हूँ उनकी स्टोरी बता रहा हूँ, तभी तो मैं ट्रूली अपनी लाइफ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ना. राइट. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं स्टोरी तो लिख दी कि एक्टर है, उसको एक्टिंग नहीं आती थी. ठीक है, अब मैं क्या क्या रिलेटेबिलिटी है मेरी लाइफ से? कुछ नहीं है. राइट. राइट. ठीक है, तो यहाँ पे बट मेजॉरिटी स्टोरीज विल बी ऑन डेली लाइफ ओनली. हाँ, और मेजर. यस, यस, यस. थैंक गॉड समवन टॉक्ड अबाउट दिस. मेजॉरिटी पे तो फोकस करो यार, क्यों एक्सेप्शंस के पीछे भाग रहे हो भाई लोग? ठीक है, और अपनी इंटरप्रिटेशन यूज करो ना यार, लाइक यू नो, डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग गाइस. ठीक है, थॉट्स एंड इमोशंस आपके हिसाब से आएंगे, मेरे हिसाब से कभी नहीं आएंगे. अगर मेरे से आप आंसर सीख करोगे ना, यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग अप्रोच. ठीक है, फिर आप वही रट्टाफिकेशन वाले उस पे जा रहे हो आप, ट्रैक पे. ठीक है, इनोवेटिव आप अगर मेरे से पूछ रहे हो कि सर ये इनोवेटिव है या नहीं है, फिर भी आप, वो भी गलत अप्रोच है. समझ रहे हो, आपके हिसाब से इनोवेटिव होगा ना, राइट? ठीक है. यस. कुछ और पूछ लिया फाल्गुनी? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि एक मतलब मेरी जो फ्रेंड है, शी वेंट फॉर भोपाल एसएसबी, वहाँ पे एक पिक्चर आई which was like more like some soldiers are standing at and they are performing maybe some operation. सामने एक फेंस है and they are lying down with a clear gun दिख रही है उसमें, that they two people have guns in their hands. मैं पता है So कौन सी पिक्चर है. हाँ, हाँ, गन है, तो उसके अलावा एक डिवाइस भी है. देयर इज अ लॉन्ग पतला सा डिवाइस हाँ, जिसके something एंड of पे that एक sort. डिस्क है, So जिसके एंड पे. हाँ. what idea that came to my mind was कि during my NCC days हमारे JCNC साहब ने हमसे एक एक्सरसाइज करवाई थी, और उन्होंने हमें बताया था कि how does a section, platoon or a company works when it is under a operation. How do you divide a platoon? How do you divide a section? How many people are in the section and platoon? And then who has a bomber, or who has rifles, who has SLRs. ऐसे उन्होंने डिवाइड करके बताया. सो इफ आई कैन राइट दैट एक्सपीरियंस हियर, यू इज इट? कैन, यू कैन, हाँ ना, ठीक सर्टनली, है. सर्टनली. ठीक है. यस अक्षय.
Hey, yes, sir. Good evening. Just I want to remember, like after class, we have discussed about the sports. We have will be right to remember you in yesterday's class that Yeah, yeah. to write a sports story like 2 or 3 times. Huh. Is it that possible, See, okay, fine, sir? fine, fine. Yeah. Yes. Just again, is that make a sense for officer like he knows only sports, not anything other? Like you have mentioned to Akshat regarding only the No, engineer stories. you're going from a very, you're generalizing, my friend. Okay, don't generalize. Fine. What did I say? Three stories, 2 to 3 stories you can write related to sports. Does that Okay. mean is only limited to sports? No, no, no. We have mother too. We have other. So we don't need to generalize. आप लोग क्या कर रहे हो ना? Generalize करते रहो. ठीक है? So don't do that. And generalization is bad. Usually. Okay. ठीक है? Yes, Okay. got it. Right. Yes, Summer. Sir, I have a doubt regarding yesterday we discussed story of postman वाली story. सर इन विच आपने बताया कि जैसे आपने पोस्टमैन को हीरो बनाया, लेकिन जब मैंने वो स्टोरी लिखी तो मैंने जो फीमेल कैरेक्टर है उसको हीरो बनाया. तो नहीं, इज अब इट तो सूली पे एज अ टांग बॉय? देंगे आपको. अब सूली पे टांग अच्छा. देंगे. Is it wrong? नहीं, I don't think so. ठीक है? I बना don't think सकते हैं so. मतलब एज अ मेल कैंडिडेट हम फीमेल कैंडिडेट अगर दिख रही है. बना सकते हो. देखो, मैंने क्या बोला कि पैटर्न रिकग्निशन पे काम करता है. ठीक है? दिक्कत कहाँ पे आएगी? आप सारी की सारी स्टोरीज में बना दो फीमेल कैरेक्टर. ठीक है? तो साइकोलॉजिस्ट को क्या लगेगा? भाई, समर हैज एन आइडेंटिटी क्राइसिस. ठीक है? ही आइडेंटिफाइज एज अ फीमेल. ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? बट इन वन ऑफ इंस्टेंसेस कैन आई राइट अ स्टोरी अलोंग दोज लाइंस? यस, if I don't have any लाइक better एक्चुअली choice. उस वाले पिक्चर में मैं पोस्टमैन से रिलेट कर ही नहीं पाया. तो जो वो फीमेल कैंडिडेट थी तो वो मुझे अपनी फ्रेंड की तरह लगी कि वो कुछ प्रिपेयर कर रही है और वो उसने क्लियर कर लिया है. तो चलेगा. अच्छा एक और बात उसमें मैंने उस फीमेल कैंडिडेट को गेट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग दिखाया और मैं हूँ खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से. तो ये कुछ होगा सिंक नहीं मतलब कर सकते हैं. यार तो वो फिर सॉर्ट ऑफ अनरिलेटेबल ही हो गई ना आपके लिए. ठीक है? तो उस केस में तो फिर आप you are just trying to write a sensible story on the basis of second hand experiences maybe. ठीक है? बट क्या 12 की 12 पिक्चर्स ऐसी आएंगी? नहीं, 12 तो 12 नहीं आएंगी. तो एक्सेप्शनल केसेस में हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. ठीक है? आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. ओके? क्या मैं being a male can I not write from the perspective of a female? No, I can, provided एज ग्रुप वगैरह सेम हो. क्यों? क्योंकि है ना, क्योंकि आप रिलेट उसी से कर रहे हो कि जैसा आपकी फ्रेंड है तो सिमिलर एज ग्रुप की होगी. ठीक है? उसकी लाइफ के जो इश्यूज हैं सिमिलर आपकी लाइफ के भी इश्यूज है ना. तो हमें क्या है ना, देखो, टैट इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट. टैट में क्या होता है ना, वी प्रोजेक्ट आर character on our qualities onto the characters displayed in the picture. ठीक है? प्रोजेक्टिव ये होता है, राइट? तो मैं अपनी क्वालिटीज जब उसमें प्रोजेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है? प्लस उसके इश्यूज जो मेरी लाइफ के इश्यूज है, मैं सिमिलर इश्यूज प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पिक्चर में, है ना. तो as long as I'm doing justice to those things, it's okay. स्मॉलर डिटेल्स क्या बहुत ज्यादा ये होगी कि मेरा तो बायोलॉजी है और उसने तो फिजिक्स, उसका फिजिक्स है. बट यार इमोशंस तो हमारे सेम रहते हैं ना भाई. डजंट मैटर. देखो, आप बास्केटबॉल खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो. ठीक है? बट यू आर पैशनेट अबाउट इट. पैशन इज द कॉमन इमोशन. Fine. So it does not matter what variation, what variety of exercises, what variety of activities we follow. ठीक है? Smaller details will vary, but emotion stays the same. ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. Sure. Yes, Neeraj.
यस सर, ये एक टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस आपने कल ये मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बोला था, सो व्हेन आई वेंट थ्रू दैट, लाइक ये 5 चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि लाइक इजीली थॉट्स एंड इमोशंस रिलेट कर पा रहे हैं, और एक एक Thank God. एक एक Yes, very एंड nice. एक एक पॉइंट पे 10-10 स्टोरी बना सकते हैं, लाइक एक एक Okay, नीड पे okay, okay. Yes, सेम exactly, है ना? सेम Exactly my पिक्चर point of view. हाँ, very nice यार नीरज, है ना? ये होगा था सर। This is the perspective, है ना, कि आप डाइवर्सिफाई करना चाहो ना एक पिक्चर पे. This is an activity which was followed by one of my friends. So he used to pick up one story, one picture, sorry, and write multiple themes over the same picture. ठीक है? So it helps us in removing the curse of being preconceived. यस सर, ठीक है? मैंने एग्जैक्टली वही किया सर, ये 5 चीजें साइड में रख के 5 अलग थीम बनाया सेम पिक्चर पे। हाँ, है ना, क्योंकि पर्पस जो है ना वो एक्शंस को चेंज कर देगा, ऑल्दो सीमिंगली सिमिलर रहेंगे ऑन द फेस ऑफ इट. डिस्कशन तो हम 50 तरीके की चीजों के लिए कर सकते हैं ना, है ना? तो वही वाली बात है. जस्ट बाय चेंजिंग अ थॉट एंड इमोशन यू कैन एक्चुअली चेंज द एंटायर स्टोरी. फाइन, ये ब्यूटी है. ठीक है, यस सर, है ना, पूछो. कल सारे ना मुझे लग रहा है कल प्रोसेस नहीं हुआ था. ठीक है, वट एवर वी आर डिस्कस इन द क्लास, आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगा सबको प्रोसेस करने में, और आज पूरा एक ही साथ बाहर आ रहा है. बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं. आई वॉन्ट व्हाट वी वांट इज कि ये फंडामेंट, क्योंकि फर्स्ट कपल ऑफ क्लासेस में ना फंडामेंटल सेट होते हैं, तो कोई डाउट्स अगर रह गए ना तो फिर वो प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं. तो इट्स अ गुड थिंग दैट यू गाइज आर कमिंग अप विद डाउट्स. आई रियली अप्रिशिएट दैट. ठीक है, and I would like you guys in the next couple of classes to come up with even more doubts, है ना? बट मेरी लाइफ मतलब थोड़ी सी ना जेपरडाइज हो जाएगी. ठीक है, बट ठीक है, चलो क्या करें. ओके, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग रेना. यस सर मेरे साथ बेसिकली ये इशू आई यूज्ड टू फेस कि स्टोरीज में मतलब टाइम ज़्यादा लगता था तो वो मिस हो जाती थी. तो व्हाट आई डिड बेसिकली, मैंने एक अप्रोच अभी आपने जो बताया उसके बेसिस पे भी है ना, ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस, एक मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है ओके डिफरेंट मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स में मेरा बैकग्राउंड इज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. वेरी तो कोई नाइस, अगर इनोवेटिव स्टोरी आती है कुछ आती है तो उस पर आई कैन गो. और वेरी अगर कोई नाइस, मैं एनसीसी में थी तो अगर कोई एडवेंचरस स्टोरी आती है तो उस थीम पे आई कैन गो. वेरी और नाइस. अभी सर मैं स्पोर्ट्स में हूँ और एज अ प्रोफेशन भी अभी आई एम वर्किंग एज अ टाइकोंडो कोच एंड रेफरी. तो अगर कोई स्पोर्ट्स की आती है तो उस पे एंड सर बेसिकली सोशल सर्विस वाला एंगल कि मैंने सेल्फ सेल्फ डिफेंस के लिए डिफेंस बेसिकली, क्लासेस हाँ कराई है. ठीक है. हाँ वो मैंने सर किया भी हुआ है. तो वो सोशल वाली स्टोरीज पे आई कैन गो विद दैट. तो सर मैंने जो अभी जैसे जब फुल साइड टेस्ट दिया तो उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि वाइल स्टोरी जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है ऑफ द मेन कैरेक्टर, तो उसमें सबकॉन्शियसली ही मेरे मेन कैरेक्टर मेजॉरिटी में या तो फिर वो स्पोर्ट्स कोच का आता है किसी स्कूल में या किसी एकेडमी में, या अगर कोई बिजनेस ओरिएंटेड लग रही है मेरे को पिक्चर तो वो इकोनॉमिक्स वाले में चला जाता है बिकॉज मेरा बैचलर्स रहा है उससे. सिमिलरली कोई अगर एडवेंचर वाली तो एनसीसी, और अगर कोई फैमिली वाली आती है तो भी कोई नॉर्मल इशू लेके कि किसी फैमिली मेंबर को हेल्थ इशू हो रहा है तो सिमिलरली कैसे उसमें फिटनेस रूटीन में हेल्प किया. तो सर जैसे वो स्पोर्ट्स वाला फिटनेस वाला एंगल आ जाता है 2-4 स्टोरीज में, तो वही आई वाज थिंकिंग ये सही अप्रोच जा रहा है या इट नहीं लाइक ठीक ये है, पूरा देखो रिपीटेटिवनेस. एक्चुअली आई विल टेल यू, यू आर स्लाइटली अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास. ठीक है, ये चीज़ हम थर्ड क्लास में डिस्कस करने वाले थे. दिस इज व्हाट एवरीवन विल हैव टू डू एट अ पॉइंट. ठीक है, तो आप थ्रू एक्सपीरियंसेस यू फेल्ट अ नीड, तो आपने पहले कर लिया वो चीज़, है ना? बट दिस इज समथिंग दैट एवरीवन विल हैव टू डू इवेंचुअली, है ना? थर्ड क्लास में हम डिस्कस करेंगे. अभी ये मत पूछना क्या, ठीक है, मैं बता दूंगा थर्ड क्लास नहीं में. नहीं सर मैं थोड़ा सा मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा था कि बाकी कहीं लोगों को कह रहा हूँ. मेरा हाँ. लाइक वो रेपिटेटिवनेस वाला चीज गलत तो नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मुझे कंफर्म नहीं यार करना देखो, था. एंड वन मोर, नहीं रेपिटेटिवनेस जो होती है ना, नहीं, how we interpret a situation or how we interpret any stimulus is always dependent on what experiences we've had in the past. एग्जैक्टली. ठीक है, एंड थोड़ा सा इनोवेशन वाला फैक्टर रहता है. मैं तेरे को क्या बोलूँगा ना, थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करना, इन फील्ड्स के बाहर भी स्टेप करने की कोशिश करना.
सर जो ठीक है इनोवेटिव वाला आपने बोला, इवन दो वो बहुत ही लाइक सिचुएशन टू सिचुएशन ही है, हमें उस पर हमेशा फोकस नहीं करना, बट अगर कहीं मैच कर रही है तो हम उसमें हाँ जाएंगे जैसा आपने बताया हाँ है। हाँ तो उसके रिगार्डिंग जैसे कि कल आप बता रहे थे कि एज एन इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड में आई कैन गो एज स्टैटिस्टिशियन के हाँ रिस्पेक्ट में सर्वे ऑर्गेनाइज, क्योंकि जो फोर्ट वाली पिक्चर में मैंने वो आर्कियोलॉजिस्ट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी बनाई ही थी, क्योंकि ओके आपने आप जैसे टेलीग्राम में थीम्स डालते रहते थे ना पहले हाँ हाँ पिक्चर हाँ हाँ पे, हाँ हाँ इस ये तो ऐसे, तो उस हाँ चीजों को मैंने फॉलो करके थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज किया है अभी। फाइन फाइन तो वही फाइन मुझे था कि सर अभी बेसिकली फोकस हमें मेजोरिटी में डेली लाइफ स्टोरीज पे करना है, और इनोवेटिव वाली अगर एक दो बन जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, हाँ नहीं तो फोकस मेन हमारा ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहिए कि इनोवेशन के चक्कर में हम डेली लाइफ वाली गलत कर दें। एग्जैक्टली ये गलती ना मेरे एक स्टूडेंट ने कर दी थी, पता है, मैं बताता हूँ एक स्टोरी इसी बात पे। वो क्या कर रही थी ना कि अब उसको भी ना जैसा आप लोग कर रहे हो ना, तो मैं इरिटेट क्यों हो गया मैं बताता हूँ। क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। जो बंदे इनोवेटिव पे स्टक होके रह जाते हैं ना, वो फिर बहुत प्रॉब्लम्स उनको आती है, क्योंकि वो डेली लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो इसी पे सोचते रह जाते हैं इनोवेटिव कैसे करना है, इनोवेटिव कैसे करना है। अब ये चीज़ एक और स्टूडेंट के साथ हुई थी, ठीक है। अब वो इनोवेटिव करने लग गई, उसने सारे जो अपना एफर्ट है ना पूरा उसी पे डाला। अब होता क्या था कि हर बार स्क्रीनिंग में जाती थी, इनोवेटिव स्टोरी तो बहुत अच्छी लिखने लग गई वो, पर लेकिन क्या हुआ ना कि वो उसने प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं करा अपनी लाइफ से, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा था ना, मल्टीपल टाइम स्क्रीन आउट फेस करा उसने। फाइन, बिकॉज अनरियलिस्टिक साउंड करती हैं फिर वो स्टोरीज। अनरियलिस्टिक नहीं साउंड करनी चाहिए आपकी इनोवेटिव स्टोरीज, ठीक है। उसके लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ लाइफ से कनेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुद्दे की बात क्या है, इनोवेटिव स्टोरीज क्या, आई मीन यू नो, बिल्कुल उसी के ऊपर हमें फिक्सेटेड होके रह जाना है, नहीं। पहले फोकस करो गेटिंग द रिमेनिंग स्टोरीज करेक्ट, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप सही से एक्सप्रेस कर पाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, ठीक है। बट फैंसी साउंड करता है इनोवेटिव तो लोग उसकी तरफ नेचुरली ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो कि सर पहले ये समझा दो, हाँ एग्जैक्टली है ना, इट विल फेच मार्क्स ओनली इफ यू डू इट करेक्टली। फाइन, बड़ा रिस्की एरिया है वो, ठीक है, हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। तो क्या मेरे को अपना 100% ऑफ द टाइम इनोवेटिव स्टोरीज पे डेडिकेट करना है? नहीं, इट विल कम नेचुरली टू मी, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं इनोवेटिव आइडियाज रीड करते रहूंगा, आ जाएगा उतने में, ठीक है, राइट। सर ग्रेट, एक और छोटा सा डाउट था मेरा, पूछो। सर जैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो मे बी सिमिलर डाउट आपको मिल रहा है, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स था रहा। कभी कभी जो वो वाली पिक्चर बहुत कॉमन है कि वो बीकर वाली पिक्चर आ जाती है जिसमें लैब में ऐसे बीकर पकड़ के खड़े हुए हैं। हाँ तो इफ आई गो बाय माय ओन एक्सपीरियंस, तो सर जनरली हमारा वो स्कूल वाला ये 9-10 क्लास वाला रहा है एक्सपीरियंस, तो उसमें अगर वो, बट पर्सनली आई फील कि वो बहुत ज्यादा स्टोरी उसमें एक्शंस, क्योंकि वो हम लोग ने जो एक्सपीरियंस खुद किए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो कलर चेंजिंग इक्वेशन और इन सब के ही रहे हैं। हाँ, दूसरा जो ये भी मेरा इनोवेटिव होगा सेकंड, यार, देखो ये भी इनोवेटिव होगा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ऑल्दो दिस इज कमिंग फ्रॉम डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, बट एट द कोर ऑफ इट क्या है, साइंस बेस्ड कुछ है ना, इनोवेशन है इसमें यार। व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू और यू आर डूइंग सम रिसर्च एक्टिविटी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन आप कर रहे हो, ये भी इनोवेटिव होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो ऑल्दो हमें एक्सपीरियंस है इसका, बट फिर भी ये इनोवेटिव कि क्या ज़रूरी है, ओवरलैप होता है यार, हमेशा ओवरलैप मिलेगा आपको, है ना। तो भाई ग्रे एरियाज हैं, बट क्या हम ग्रे एरियाज पे फिक्सेटेड होके बाकी एरियाज को छोड़ दें, इग्नोर कर दें? नहीं, वो भी सही नहीं है ना। क्योंकि सर मेरे साथ इशू ये हो रहा था कि स्पेशली जैसे इस वाले थीम पे कि अगर आता है तो आई गो एंड रिलेट टू दैट सेल्फ ऑफ माइंड जो स्कूल में थी, बट अभी मैं ग्रेजुएशन एंट्री के लिए जा रही हूँ, तो आई कैन नॉट मेक अ मेन कैरेक्टर किसी स्टूडेंट को या कुछ। एंड ग्रेजुएशन सेकंड, एंट्री, अच्छा ओके, तेरा इकोनॉमिक्स में है ना, ठीक है, फाइन। है ना। वैसे लेबोरेटरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। I've done a BSc in physical sciences, सेम ही एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगर तू लिख भी दे ना कॉलेज स्टूडेंट, एग्जैक्टली इट वोंट मैटर, सेम ही एक्सपेरिमेंट्स हैं, वही टाइट्रेशन है, वही हीटिंग द सॉल्ट है, वही सब है। इट वोंट मैटर। बीएससी कॉलेज स्टूडेंट लिखते वहां पे, इट वोंट मैटर।
हाँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट, राइट। तो आप ओके बीएससी पीसीएम के स्टूडेंट भी दिखा सकते हैं उसको, है ना, इफ यू वांट टू कीप इट क्लोज टू योर एज, राइट। क्योंकि सर जो आपने सेकंड हैंड एक्सपीरियंस का कल पॉइंट एक मेंशन किया था, एज आई एम आल्सो वर्किंग एज अ लाइक कोच एंड टीचर आप बोल सकते हो, तो वो दूसरी चीज जो मैंने एक्सपीरियंस करी है कि जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो मेरे हाँ, सामने क्लास 12 वाले, बट अच्छा, अगेन व्हाट आई फील कि जो मेरा सब्जेक्ट मैटर एंड एक्सपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाएगा, तो फिर वो पीआईक्यू से डिफरेंस वाला थोड़ा पॉइंट सा कि अगर क्रिएट if, करेगा। हाँ, हाँ यस हाँ, सर। हाँ, तो इसके ठीक है, रिगार्डिंग सर मैंने एक बीच का रास्ता निकाला था, जो एक स्टोरी मेरे दिमाग में आई थी हाँ, कि अगर जैसे कि कुछ बिजनेस ओरिएंटेड थीम्स आती हैं कि स्टार्टअप वाली कि हाँ, सो अगर जिसमें मतलब मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि आई कैन मेक अ स्टोरी अराउंड कि दो दोस्त हैं जिसमें आई विल बी दी वन जो मार्केटिंग एंड इकोनॉमी फाइनेंस वाले मैटर को मैनेज कर रही है, दूसरी मेरी फ्रेंड है जिसकी एक्सपर्टीज ये है, तो उसके साथ में इनोवेशन करके वी आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट और समथिंग, तो उसके रिगार्डिंग तो मुझे लग रहा था ये शायद ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी मेरे एज एंड बाकी बैकग्राउंड के हिसाब से। यस, एग्जैक्टली, है ना, दैट विल बी मोर यस अप्रोप्रिएट, है ना, एज अप्रोप्रिएट। यस रीसेंट टाइम्स के हम जो एक्सपीरियंसेस है ना वो ज़्यादा अगर एक्सप्रेस करेंगे, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, है ना, तो मेरी 12 में से जाहिर सी बात है ज़्यादा कॉन्शियस मेमोरीज जो हैं तो दैट विल बी अराउंड वर्क एक्सपीरियंस, फाइन, ऑफिस, यस सर ठीक है, या कोलीग्स की बात कर रहा हूँ मैं, या प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो हमारे रिसेंट एक्सपीरियंसेस है ना वो थोड़े से हम डिसेंट अमाउंट में लिखें तो यस बेटर है ना, क्योंकि वाई, बिकॉज आज के टाइम में ना दैट इज एन एक्टिव पार्ट, माई प्रोफेशन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। और इसी बात पे हम जरा स्पोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे कि किसी ने बात करी थी अभी, समवन रेज्ड अ डाउट यस्टरडे, ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे कि सर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ठीक है, शुड आई राइट मोर स्टोरीज अराउंड स्पोर्ट्स, दे कम नेचुरली टू मी। आई सेड यस, व्हाई नॉट, स्पोर्ट्स आर द मदर दैट इज ऑफ योर ऑल पर्सनैलिटी। OLQs, है ना, खासकर टीम स्पोर्ट्स। अगर आप स्पोर्ट्स बेस्ड स्टोरीज लिख सकते हैं, डेफिनेटली गो फॉर देम, ठीक है। यस स्पोर्ट्स बेस्ड स्टोरीज आर डेफिनेटली एन एडेड एडवांटेज, है ना। सवाल ये है कि क्यों लिखूं मैं, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स योर इज, लाइफ। है ना, स्पोर्ट्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ। डिफेंस एस्पिरेंट की लाइफ का एक मेजर पार्ट होता है स्पोर्ट्स, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा लिखना है। दूसरी चीज, यस सर आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरी लाइफ का आज के टाइम पे एक्टिव पार्ट है प्रोफेशन, तो मैं एक दो स्टोरीज उसके अराउंड भी ज़्यादा लिखने की कोशिश करूंगा। एक या दो स्टोरीज मैंने लिख दी, क्योंकि मैं कैसे पाँच छः स्टोरीज में डेली लाइफ रिलेटेड लिखने वाला हूँ, उसमें से एक या दो मैंने इसकी दे दी, एक या दो मैंने स्पोर्ट्स की दे दी, फाइन, बैलेंस कर दिया मैंने। आप समझ आ रहा है। दूसरी चीज़, बाकी फिर फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ, ये भी लिख सकते हैं, हाँ डेफिनेटली, यस, उसका भी हमें निकल के आएगा, ठीक है। क्या ये ओवरलैप नहीं हो सकते? हो सकते हैं। किसी स्टोरी में मैं वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ बैलेंस कर रहा हूँ, ओवरलैप भी होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिंपलिस्टिकली सिर्फ एक ही चीज से रिलेटेड स्टोरी लिख दी मैंने, है ना, ठीक है। यस जैसे मान लो आप, मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टोरी भी लिख रहा हूँ, या तो मैं दिखा रहा हूँ कि फ्रेंड्स के साथ खेल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स का ओवरलैप होगा। या तो फिर मैं ये भी दिखाऊंगा, ये भी हो सकता है दिखा रहा हूँ कि मैं फैमिली से परमिशन सीख कर रहा हूँ किसी टूर्नामेंट में जाने के लिए, ठीक है, तो फैमिली का भी ओवरलैप हो गया। तो कई बार दो तीन मेजर एरियाज, दो तीन पार्ट्स ऑफ माई लाइफ विल कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टोरी, यू अंडरस्टैंड। इतना यस वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, आप समझ रहे हो, अदरवाइज फिर रोबोटिक हो जाएगी ना चीज़ें, ठीक है। बट हमें जब अप्रोच करना होता है ना, इफ़ यू वांट टू लर्न साइक फ्रॉम डाउन राइट द बेसिक्स, तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेक डाउन करके, अब देखो, आप लोगों को जाहिर सी बात है, इफ़ यू गाइज आर फेसिंग प्रॉब्लम विद साइक, देन ओनली यूर हियर, राइट। तो हमें ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्या ब्रेक डाउन हमने कर दिया तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे इंडिपेंडेंट हैं? नहीं, डेफिनेटली कंप्लीटली नहीं। इंडिपेंडेंट नहीं है, यस यस इंटरडिपेंडेंट है ना, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सर। ओके, श्योर थिंग, यस खुशबू।
सर अभी जब आपने लिंक शेयर करी थी डैड से रिलेटेड, तो उसमें एक पिक्चर थी दैट देयर वर टू पीपल सिटिंग ऑन सोफा, दे वर तो सर कि अभी हम आधी बातें ना यही तेरी लिखेंगे कि दे नहीं, वर डिस्कस। खुशबू आधी बातें सुनाई नहीं दे रही है यार तेरी, ठीक है? सो ऑडियो सॉरी नेटवर्क का कोई इशू है प्रोबेबली, राइट? मेरे को इतना समझ में आया कि 2 people वर सिटिंग सोफा, ठीक है? उसके बाद का मेरे को समझ में नहीं आया। सर अभी ऑडिबल हूँ मैं? हाँ बेटर है। हाँ, तो दे वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, तो जनरली वी यूज टू राइट द स्टोरी कि दे आर डिस्कसिंग लाइक कुछ असाइनमेंट रिलेटेड वर्क या फिर विच दे आर अलॉटेड इन स्कूल और कॉलेज। तो सर मैंने इस पे एक स्टोरी लिखी थी अभी रिसेंट में आज कि सर आई डोंट हैव एनी एक्सपोजर इन दिस फील्ड, बट इन जैसे मैं 11th 12th में बायोलॉजी की स्टूडेंट रही, हाँ and after my 12th I shifted to arts. हाँ So like I have read a chapter called biotechnology in 12th class. तो मैंने उस पे ये स्टोरी थिंक करी थी कि there are two people sitting and they were BSc biotechnology student and they were discussing about the severe climate change, and they have seen in their village that the farmers are severely affected हाँ by the pattern change in the climate, and their crops are not growing well, like production उतना अच्छा नहीं है या फिर उनमें resistance नहीं है pest से related ऐसा कुछ। हाँ तो सर मैं मतलब और फिर उन्होंने मतलब सोचा कि कैसे इसको ओवरकम करा जाए, दे इंट्रोड्यूस बीटी क्रॉप्स एंड फिर उसको मतलब दे उसमें इन्होंने रिसर्च वगैरह करा एंड जो ऐसा क्रॉप निकल के आया जो रेजिस्टेंस है जिसमें और जिसकी प्रोडक्शन अच्छी है। उसमें ये क्वालिटी है कि वो स्ट्रेस को होल्ड कर सकता है, लाइक अगर सूखा पड़ रहा है या फिर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उस पे। तो एंड दे इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड द फार्मर्स। सवाल क्या है? सवाल क्या है? मैं समझ गया आइडिया, सवाल क्या है? तो सर मेरा आइडिया ये है कि आई डोंट हैव एनी एक्सपोजर इन दिस फील्ड एज आई हैव डन बीए इन पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लाइक मैं अभी डेली लाइफ से इसको रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। आई हैव सीन ग्रोइंग क्रॉप्स इन माय एरिया, क्योंकि मैं भी तो होम में स्टे करती हूँ, तो मैंने देखा है कि फार्मिंग कैसी होती है, क्या है। आई एंजॉय द प्रोसेस, बट मैं उसको अभी सर डेली लाइफ से रिलेट नहीं करती। तो मतलब ऐसी स्टोरीज अगर हम फ्रेम कर रहे हैं तो डज दैट इम्पैक्ट कि अभी ये रिलेट तो हो नहीं रही है मेरी स्टोरीज से, मतलब नहीं मेरी यार, लाइफ से। नहीं 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 यार, देखो मेरी बात समझो। आप फिर वही है ना, फिर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नैरो पर्सपेक्टिव ले रहे हो सारी चीज़ों का, ठीक है? अगेन म्यूट कर लेना, म्यूट कर लेना, ठीक है? यू आर टेकिंग अगेन दैट वेरी नैरो पर्सपेक्टिव, ठीक है? मैंने कभी ये बोला कि PIQ में ही लिमिटेड रहना है? इसी बात पे ना ज़रा देख लेते हैं, इसी बात पे ज़रा एक बार इंस्ट्रक्शंस हम, क्योंकि अब मुद्दा छिड़ा है तो फिर लाइक बात दूर तक जाएगी। फाइन, सर मैथ्स तो PIQ से ही लेना पड़ेगा ना? रुक जा भाई, बता रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं कुछ बोल दूंगा फिर कोई मेरे पे सूली पे टांग देगा फिर आपने बोल सर कैसे एक दिया? Shit. I'll resume. So like I said, ठीक है? तो मैं एक बार ना आप लोगों का ये बात पूरा एक ही बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड दो मेरे को। ये क्यों होता है ना यार, क्योंकि लोग ना ध्यान नहीं देते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या है साइकोलॉजिस्ट के। कभी किसी ने ध्यान, कोई अगर मेरे को रिपीट कर सकता है इंस्ट्रक्शंस तो बता दो यार जरा, कोई भी बंदा, आई चैलेंज। फाइन, कोई बंदा अगर साइकोलॉजिस्ट के इंस्ट्रक्शंस रिपीट कर सकता है, टेल मी व्हाट डज द साइकोलॉजिस्ट से? एक आध तो निकल ही आएंगे, बट आई नो दैट 90% ऑफ यू डोंट नो और डोंट रिमेंबर साइकोलॉजिस्ट के इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। नहीं याद है ना? याद है? याद तो है, मैं भी थोड़ा सा बीच में भूल सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस से कि भाई हम 100% बता सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के इंस्ट्रक्शंस क्या है? प्लीज रेज हैंड।
है ना। सी ठीक है, ध्यान देना फिर इसलिए अभी, ठीक है। देखो साइकोलॉजिस्ट क्या बोलता है, एंड दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ टैट, फाइन। व्हेन आई से when we talk about tat, right? So the psychologist will say that you have to mention what led to the situation, ठीक है, what is happening in the situation, ठीक है। थर्ड, what is the likely outcome, रुक जाओ, ठीक है। Then you also have to pick one central character, mention his thoughts, ठीक है, hold on, mention his thoughts, emotions and actions, ठीक है। The central character should be of your age, fine। Then without regard to beauty of expression, मतलब you have to pen down your thoughts as and when they come to your mind, fine। You also have to put in some imagination, these are imaginative stories, you understand, ये बेसिक्स हैं। तो इसमें आप ये बताओ कि इसमें हमें क्या पता चलता है। He also says you have to mention the first response, first response, Sir, whatever comes to our mind, we can put them freely. you can, है ना। आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या आएगा, समथिंग विच यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ, करेक्ट, राइट। जो आपकी लाइफ के जो इंसिडेंट्स रहे हैं आप उसी से तो कनेक्ट करोगे ना, है ना। तो इनडायरेक्टली वो ये बताता है एक्सपीरियंसेस के, तो विच मीन्स PIQ, फाइन। बट ऑन दी अदर हैंड आप ये देखो इमेजिनेटिव भी बोल रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि मैं PIQ में लिमिट होके रह जाऊं, नहीं, इमेजिनेशन भी है, ठीक है। क्या सिर्फ मेरे को एक्शंस लिखने हैं, नहीं, थॉट्स एंड इमोशंस भी लिखने हैं, ठीक है। क्या सिर्फ मैंने पूरी स्टोरी में व्हाट लेड टू द सिचुएशन लिख देना है, नहीं, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन, व्हाट इज लाइकली आउटकम भी लिखना है। आप समझ रहे हो, दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ टैट। इसके अलावा जितनी चीजें हैं वो थोड़ी ग्रे एरिया में आती हैं कि हीरो लेफ्ट गया या राइट गया, भाई अब वो तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है ना यार, वो लेफ्ट भेजे या राइट भेजे, राइट, फाइन। सेंट्रल कैरेक्टर शुड बी योर एज, उसने बोला है, ठीक है। बट हमारी पिक्चर अलाउ नहीं कर रही है मान लो, तो क्या पिक्चर से हम डिसएग्रीमेंट करके हम क्या लाइक यू नो कंप्लीटली डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट एज पे चले जाएं और उसके साथ उसके हिसाब से लिखने लगे, पैटर्न के हिसाब से डिसाइड होता है वो, यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। पैटर्न अगर ये बना कि यार ये बंदा हमेशा ओल्ड कैरेक्टर ले रहा है, तो फिर इट्स अ रिस्की, इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, करेक्ट। या फिर इफ दिस पर्सन हैज एन आइडेंटिटी क्राइसिस, राइट, ही थिंक्स ही इज अ फीमेल, तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, राइट। ये जो है ना, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैव टू अबाइड बाय,
रिमेंबर दिस, ठीक है। थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस बहुत क्रूशियल है। जो है ना, देखो 2 टाइप की चीजें ये बता रहे हैं। यहाँ पे क्या हमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, इधर हमें बता रहे हैं कंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, इधर बता रहे हैं ये भी, ये एक मतलब लाइक कैटेगरी ऑफ स्टोरी बता दिया है इन्होंने हमें कि मतलब लाइक कैसा होना चाहिए। इधर से भी हमें वही पता चल रहा है। आप समझो सारी डिटेल्स तो यार वो साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड कर ही रहा है ना आपको, हम ही ध्यान नहीं देते हैं बस। राइट, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। ठीक है, और किसी का डाउट था? यस जयेश। Yes, sir. Like you yesterday, you mentioned that the repeaters write organizational story more of the time. Sir, but my whole last 2 years went on organizing various event in the various months. So my whole PIQ is contained with that position of responsibilities, and also shows that I have good organizing ability and all that things. So आप मेरे पिछले कितने कुछ रिस्पॉन्सेज और साइट टेस्ट के हिसाब से सर मैंने कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया है सर। तो मैं जनरली 6 ऑर्गेनाइज्ड वाली स्टोरी लिखता हूँ जिसमें सारी एक जैसा पैटर्न नहीं होता है। मतलब कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ सर टूर प्लान कर लिया और कुछ ऐसे टाइप की कि जो प्लान किया और उससे कुछ आउटपुट मिला है, मतलब कुछ सीखने लायक हुआ है। एक हाथ स्टोरी सर इमोशनल बेस्ड हो जाती है, जैसा उस दिन के टेस्ट में सर वो एक स्टोरी आई थी कि वो डॉक्टर मतलब वो एक डेड बॉडी है और दैट वुमन इज क्राइंग। तो मैंने उसमें लिखा था कि दैट डॉक्टर कंसोलिंग दैट लेडी, और फिर उसके बीच में थोड़े क्रंच डाले थे स्टोरी के। ठीक है। और 2 स्टोरी सर मैं टेक्निकल लिखता हूँ, काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑन वेरियस, जैसे कि स्कीइंग वाली चीज होगी तो मैं वहाँ पे लिखता हूँ कि सर कोई प्रोजेक्ट वगैरह वाला सीन हो गया। सो दैट कम्स अंडर इनोवेशंस। एंड एक हाथ स्टोरी वेग सी हो जाती है सर। और एक स्टोरी में सर पार्टिसिपेशन दिखा देता हूँ कि कोई इवेंट था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया। ओके। और सर एक डायरेक्ट प्रॉब्लम वाली स्टोरी आती है, मतलब एक्सीडेंट वाली सीन जो था उस दिन का। तो उसमें मैंने लिखा था सर कि एक्सीडेंट हुआ, उसने वो गैरेज वाले के पास गया, तो अपना रिपेयर तो करा लिया, बट ड्यूरिंग टॉकिंग विद दैट मैकेनिक शी गॉट टू नो दैट ही डन ITI एंड ही वाज वर्किंग इन दैट गैरेज। बट फिर उसके बाद जो मेरा मेन कैरेक्टर है उसने उसको डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया, सो दैट वो उसको हेल्प हुई। मतलब मैं तो अपना रिपेयरिंग करके निकल गया, बट मैंने जो उसको इन्फॉर्मेशन दी उससे वो बंदे को कुछ आउटपुट मिला। ओके। तो सर यही 12 स्टोरीज का पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया सर। ठीक है। जैसा आपने बोला था कि आप सारी स्टोरी ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड लिखते हैं, तो मेरा ये पैटर्न मेरे को चेंज करना चाहिए सर कि इज इट ओके? नहीं यार, ठीक लग रहा है मोटा मोटा, पर ये कर सकता है ना, थॉट्स एंड इमोशंस डाल हर स्टोरी में। ठीक है, थॉट्स एंड इमोशंस अगर मिस कर रहा है ना तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। और ये सारी ऑर्गेनाइजिंग वाली नहीं है, इमोशनल वाली ऑर्गेनाइजिंग वाली नहीं है भाई। नो सर, आई जस्ट सेड दैट 6 के आसपास मेरी ऑर्गेनाइजिंग वाली आती है। अच्छा ओके, अच्छा। देखो ऑर्गेनाइज क्या हम ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के बिना क्या हम स्टोरी लिख सकते हैं? नहीं। जैसे ही आप एक्शंस लिखने पे आए ना, आप ऑर्गेनाइजिंग ही दे रहे हो भाई। यस सर। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस एटसेट्रा। यू अंडरस्टैंड दिस? थॉट एंड इमोशन जो है ना, ये हमारा फैक्टर 2 एक्सप्रेस करेगा। यू अंडरस्टैंड? तो क्या मैंने एक स्टोरी लिखी, सिर्फ उसमें से मैं प्योरली ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दे सकता हूँ? अगर मैं सही से लिख रहा हूँ ना, कीपिंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस इन माइंड, देन आई कैन नॉट। फाइन, आई कैन नॉट। मल्टीपल फैक्टर्स आएंगे एक ही स्टोरी में, ठीक है। बट कई बार क्या होता है ना कि किसी एक फैक्टर की ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। कुछ मैं आप लोगों को इमेजेस दिखाऊंगा, बट वो मेरे ख्याल से हम लोग कल कवर कर पाएंगे, ठीक है। 11 बज रहे हैं ना, 11:30 तक पुश करें या ख़त्म करना है? कर सकते हैं 11:30।
ठीक है, तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, फाइन, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उसके बेसिस पे। ओके, तो ये तो हो गए भाई आपके टैट के इंस्ट्रक्शंस, फाइन। अब देखो, हमें क्या है, एक और चीज़ समझनी है, क्योंकि हमें साइकोलॉजिस्ट का दिमाग समझना है कि लाइक व्हाट इज ही ट्राइंग टू मेक अस डू, है ना, स्ट्रैटेजी क्या है उसकी। क्या हमें साइकोलॉजिस्ट बनना है? नहीं, बट हमें ये समझना है कि व्हाट आर द पिटफॉल्स। ठीक है, पिटफॉल्स हमें समझना है, इसलिए हमें साइकोलॉजिस्ट का अप्रोच समझने की जरूरत है। ओके, कि हम क्या नहीं करना, हम क्या नहीं करना ये हम समझ जाएंगे तो हमारे पास डूज में काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, काफी ऑप्शंस होते हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, एक बात समझना, एक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट के 2 टास्क होते हैं। ओके, so let's say we have a psychologist. He is trying to assess 2 things. Fine. पहला क्या है कि does the person have any mental disease? Fine. दूसरा, does he have the qualities or not? ठीक है, फाइन, ये 2 टास्क होते हैं। ओके, आप एक बात समझो, जितनी नेगेटिव पिक्चर्स हैं वो आपके बायसेस या मेंटल डिजीज को हाईलाइट करने के लिए आती हैं। ठीक है, जितनी नेगेटिव पिक्चर्स है, फाइन, जितनी पॉजिटिव या न्यूट्रल हैं वो क्वालिटीज के लिए आ रही हैं, और न्यूट्रल। यू अंडरस्टैंड दिस? फाइन, उसमें हम क्वालिटीज हाईलाइट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो हम जरा देखते हैं कैसी पिक्चर्स और क्या होती है, क्या बेसिक आइडिया है। फाइन, सो 1 सेकंड देना मेरे को। अब मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, ठीक है, और हम समझने की कोशिश करेंगे जरा कि क्या पर्पस है साइकोलॉजिस्ट का। फाइन, गिव मी अ मोमेंट। सो आई हैड अ वेरी स्मॉल डाउट। आप पिक्चर निकालते निकालते सुन लो। जैसे मुझे कोई पिक्चर दिख रही है, सो इज इट नेसेसरी कि मैं उसमें सिर्फ एक्शन वाला फेज डालूं? इट कुड बी, और इट कुड बी द रिजल्ट वाला फेज और द थॉट्स एंड इमोशन वाला फेज। आपके ऊपर है। ओके, आपके उस ऊपर है। ऐसा कंपल्सन नहीं है कि सिर्फ एक्शन वाला फेज दिखाना है उस पिक्चर में मुझे, कि इस पिक्चर में भी एक्शन हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं। इट कुड बी थॉट और इमोशंस, और इट कुड बी द रिजल्ट इन द एंड जो मुझे नहीं यार मिला है। देखो, जैसे पोस्टमैन पिक्चर में वाली स्टोरी थी। पिक्चर में ना यूजुअली इवन थिंकिंग इज एन एक्शन। यू अंडरस्टैंड दिस? अगर बंदा बैठ के सिर्फ सोच रहा है, व्हाट इज ही डूइंग? ही इज इंट्रोस्पेक्टिंग। व्हाट इज ही इंट्रोस्पेक्टिंग अबाउट? हिज एंटायर डे, और मे बी ही इज प्लानिंग। ठीक है, इज लाइकली टू राइट डाउन थिंग्स। यू अंडरस्टैंड दिस? तो पिक्चर में तो एक्शन होगा ही होगा, है ना, ऑल्दो इनएक्टिव काइंड ऑफ पैसिव एक्शन हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल लाइक सेंस में एक्शन नहीं है, बट कुछ तो एक्शन है ना। रोहित शेट्टी जरूरी थोड़ी है हर बंदा रोहित शेट्टी टाइप हो। सर जैसे वो पोस्टमैन और लड़की वाली स्टोरी थी, उसमें हाँ। तो हम रिजल्ट दिखा रहे थे ना, एंड में तो हमें रिजल्ट दिख रहा था कि उसे कॉल लेटर आ गया, वो तो हमने रिजल्ट दिखाया। उसमें तो ना हमने उसकी प्लानिंग दिखाई ना एक्शन दिखाया, मतलब पिक्चर से रिलेट करके कि पिक्चर में एक्शन नहीं हो रहा, उधर तो रिजल्ट आ रहा है। हाँ, इट्स नॉट नहीं, एन इशू पिक्चर कि में मैं एक्शन हो रहा है ना। जैसे पिक्चर में एक्शन क्या हो रहा है? रिसीविंग द कॉल लेटर, राइट, एंड इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स अबाउट रिजल्ट। ठीक है, एंड देन दे वर हैप्पी एंड दे सेलिब्रेटेड एक्सेट्रा। हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो पिक्चर में तो एक्शन होगा, ओके, राइट। अब वो हम इवन इफ आई, देखते हैं। हाँ बोलो। इवन इफ आई डोंट ट्राई टू डू इट, वो होगा। हाँ वो है ना, वो पिक्चर में एक्शन है, कुछ हो रहा है पिक्चर में। ठीक है, वो हम क्या करते हैं ना, हम 2 टाइप के एक्शंस होते हैं, एक रेलेवेंट होगा, एक इररेलेवेंट होगा। हम इररेलेवेंट एक्शंस पे ज्यादा घुस जाते हैं। ठीक है, पिक्चर में दिख रहा है कि यार वो रिसीव कर रही है कॉल लेटर, हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन कैसे करी। भाई पास्ट में जा रहे हैं ना अननेसेसरली, जरूरत से ज्यादा।
है ना। तो अगर आपने 6 स्टोरीज में ऐसा कर दिया, आपको जो पिक्चर में दिख रहा है आप उस पर ना लिख के पास्ट में ज्यादा लिख रहे हो, तो वो क्या हाईलाइट करता है कि आप पास्ट में ज्यादा जीते हो। ठीक है, यू माइट ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स, फाइन। या फिर आप मान लो या फिर आप जरूरत से ज्यादा फ्यूचर से रिलेटेड लिख रहे हो, मतलब अनरियलिस्टिक है, सपने ज्यादा देखता है, शेख चिल्ली के हसीन सपने। सर ये जो पोस्टमैन वाली पिक्चर की बात हो रही है, फ्रॉम गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो हमारे में पिक्चर आती है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग पास वाली चीजों में, हाँ तो यहाँ से लाइक ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद उसके लिए प्रिपरेशन एंड वहां पे जाके क्या क्या एक्शन किए उसको वी कैन मेक अ स्टोरी। परफेक्ट। सर जैसे कि वो पोस्टमैन वाली जो बात थी, द क्वेश्चन वाज दैट ओनली, दैट्स व्हाई आई रेज्ड माय हैंड दैट टाइम। यहाँ पे हाउ रेलेवेंट इज इट टू लाइक इन्वॉल्व एन एक्सटर्नल कैरेक्टर इन दिस पिक्चर? आपके पास वायबल कैरेक्टर्स दे रखे हैं, यहाँ पे पोस्टमैन है और एक वुमन इज देयर। हाँ वुमन इज देयर, है ना। यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट, बट देखो मैं क्या बोलता हूँ ना, बाहर से कैरेक्टर इंपोर्ट करना, ओनली डू दैट वंस इन द एंटायर सेट। ठीक है, डोंट डू इट टू मच। So in case of in case of this postman picture, I made postman the hero, and I said that he comes from a financially challenged background, so he joined a very small job at first of postman, and simultaneously he started preparing for civil services or some bigger exam. Okay. So, and I made my actions towards that. So I made it about his daily routine, that he collects post in the early in the morning, and then he finishes all his work by the afternoon, and then he starts preparing for his whatever he wants to do. So, like most of the actions in my story are not happening in the picture. So how relevant is that? यार कम रेलेवेंट है। रादर देन दैट इफ यू हैड फोकस्ड ऑन, देख तू प्रोग्रेसिव दिखाना चाहता है ना, तो पहले क्या करना, पिक्चर जो दिखा रही है उसके साथ जस्टिस कर। पिक्चर क्या दिखा रही है कि भाई वो बंदा लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, हाउ इज ही डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, फाइन। उसके साथ साथ हम आगे या पीछे ये एडिशनली ऐड कर सकते हैं दैट because he wants to provide a better life for his family, so therefore he goes back after finishing the day job and prepares for civil services। ठीक है, एक छोटी सी लाइन में हम करके समराइज कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? दैट विल आल्सो हैव अ सिमिलर इम्पैक्ट। सिमिलर लाइंस टू दिस, मैंने एक चीज सोच रखा था कि the postman is delivering letters from the person, the woman there is the sister, का भाई जो है फौज में है, and she is not, it's like a village background, so she's not exactly like able to like read as such। वो एक लाइन पे था, so this postman is showing empathy कि वो पढ़ा के मतलब he is reading out the letter, ऐसे कुछ था, but what I wrote was different। I tried to make different stories for the same picture। That's when I thought of these, and I didn't know how relevant or how good or bad they were। हो सकता है, it's just another possible theme, ठीक है, so it's certainly possible, है ना, provided how you portray it। तूने village background की बात करी है तो ठीक है, it's possible, fine, but it's about selling the story, right? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। Yes sir। ओके ग्रेट। सो देखो यार, जैसे कि हमने अभी तक बात करी है, आपको एक बात समझनी है, हर पिक्चर जैसे हर घर कुछ कहता है वैसे हर पिक्चर भी कुछ कहती है, ठीक है, नैरो लैक, राइट। सो देखा होगा किसी ने किसी ने तो देखा होगा यार ये वाला है, नैरो लैक हर घर कुछ कहता है ना, गुड ठीक है। सो अब बात समझो, देखो जब हेनरी मरे ने जो टेस्ट दिया था, राइट, मरे एंड मॉर्गन ने दिया था टेस्ट, इन्होंने क्या प्रपोज करा ना, इन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन कोई इवैल्यूएशन का ना प्रपोज नहीं करा, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स, राइट, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। जितनी हमने बात करी है ना अभी तक, तो मैंने फंडामेंटल्स ऑफ टैट बताई है ना आपको, वही
सारी चीजें इन्होंने ओरिजिनल फाउंडर्स ने दी थी टेस्ट के, ठीक है, आप समझ रहे हो, उनके अराउंड तो क्लियर कट है कि भाई ये नहीं होगा तो बंदे को इवैल्यूएट नहीं करना है, ये नहीं होगा तो इवैल्यूएट नहीं करना है, पर लेकिन बाकी चीजों का इंटरप्रिटेशन नहीं दे रखा। वो एक्सपीरियंस ऑफ द साइकोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है। क्या आपको वो डिकोड करना जरूरी है? नहीं, आपको क्या समझना है, बाकी ग्रे एरियाज जो है वो मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से दूंगा, सिंपली, ठीक है, इतनी बात समझनी है बस, राइट। क्या डिटेल में जाना जरूरी है कि सर क्या नहीं दिया क्या नहीं दिया? नहीं। अब हम क्या समझते हैं इसके बाद, देख लो, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ जस्ट फॉर कॉन्फर्मेशन, वही सारी चीजें, राइट। सो करंट सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, ये इंस्ट्रक्शंस का पार्ट होता है, ठीक है। उन्होंने जब बोला था कि साइकोलॉजिस्ट क्या इंस्ट्रक्शन देगा, अच्छा एक और चीज देखो, 50 मिनट्स फॉर 10 पिक्चर्स, राइट, सो 5 मिनट्स फॉर 1 पिक्चर, आप समझ रहे हो। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो चीजें कर रहे हैं ना, दिस इज क्लिनिकल साइकोलॉजी, और मिलिट्री साइकोलॉजी डिफरेंट है, जानबूझ के स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं आप पे थोड़ा टाइम का, ठीक है, क्यों कि फर्स्ट रिस्पॉन्स आए, ठीक है। बट क्या इसका ये मतलब है कि ट्रेनेबल नहीं है? ट्रेनेबल है, राइट। चलिए बात करते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। करंट सिचुएशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर, राइट। देखो, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर द टू सिंगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, फाइन। करंट सिचुएशन पे आपको इलेबोरेट करना होगा, अदरवाइज क्या होगा, आपने आपकी स्टोरी प्री कंसीव्ड हो गई। जो क्वेश्चन, एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। एक मूवी देखी होगी धमाल वाली, धमाल है ना, धमाल में क्या होता है, एक सीन होता है ब्रिज का, आदि और मानव जा रहे होते हैं, राइट, और उधर एक बंदा मिलता है, दे स्टॉप द कार, है ना, उधर मिलता है वो बंदा, ठीक है, तो उससे क्या पूछते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है, कहता अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, एक परम पीर परम चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल। बात समझ रहे हो, अय्यर बोल के भी सफिशिएंट था काम, ठीक है, बट वो क्या बताने लग गया पीछे का पूरा स्टोरी। एस्पिरेंट्स की यही टेंडेंसी होती है, समझ रहे हो, जो दिखाया जाएगा ना उस पे नहीं बात करेंगे जरूरत से ज्यादा, पीछे जरूरत से ज्यादा जाएंगे और बड़े इनफेक्टिव तरीके से, है ना, एक्सप्लेन करने लगेंगे वर्ड्स जरूरत से ज्यादा, एक्शंस और इसमें उसमें। थॉट एंड फीलिंग में एक्सप्रेस करो, थॉट्स एंड इमोशंस में एक्सप्रेस करो पीछे का, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि थॉट्स एंड इमोशंस का ज्यादा इम्पैक्ट होता है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं। हम मूवीज देखने जाते हैं तो हम देखते हैं भाई वरुण धवन आया, ठीक है, अब जैसे आज के टाइम में कौन चल रहा है, वो राजकुमार राव चल रहा है ना, क्यों? क्योंकि बंदा ज्यादा रिलेट कर पाता है यार उससे, है ना। रणबीर कपूर यार पैम्पर्ड चाइल्डहुड रहा है, ये रहा है वो रहा है, उसके हिसाब से भाई अपन रिलेट ही नहीं कर पाते, यू अंडरस्टैंड। और चलो रणबीर कपूर के साथ भी रिलेट कर लो आप एक बार को, अगर बैकग्राउंड वैसा सेट करा है सेंट्रल कैरेक्टर का जो हीरो है उसका, ठीक है, कि वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था, स्ट्रगल कर रहा था, रॉक स्टार में थोड़ा कुछ ऐसा ही दिखाया है, स्ट्रगल कर रहा था, है ना, फादर से लड़ता है कि मेरे को म्यूजिक परस्यू करना है, तब हम समझ पाते हैं कि यार उसके क्या फील करता है ना वो, उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, तो उसके बाद जाके क्लाइमैक्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो मुद्दे की बात क्या, थॉट्स एंड इमोशंस जो है ना एक्सप्रेस करना है। चलिए एनीवे, preceding events, वही वाली बात है, preceding events, what has led to the event shown in the picture, what is the outcome, ठीक है, इतनी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, फाइन। अब जरा देख लेते हैं कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस, फाइन। लाइक आई सेड कि जैसे हर पिक्चर कुछ कहती है, तो मेरे को ये बताओ, ये पिक्चर देख के ये पिक्चर क्या कह रही है, क्या जानना चाहती है ये पिक्चर, क्या पहेली बुझा रही है आपको? सर ये पिक्चर ये कह रही है कि देयर इज स्टूडेंट, a woman student who is like she's currently pursuing education, and so she's from a village background. She's observing, I feel she's observing some agriculture practices going on. So इसके अराउंड मैं कुछ agriculture related story बना सकता हूँ, जनरली तो एक स्टूडेंट। ओके, Some agriculture or land survey.
एग्रीकल्चरल लैंड्स, ओके। सब मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग है, आप बताओ सही है कि नहीं। इसके कपड़े थोड़े मुझे ऐसे अंग्रेज टाइप में लग रहे हैं, पर पीछे जो लोग हैं वो इंडियन लग रहे हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये बाहर से कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह करने आई है इंडिया में, ऐसा कुछ लाइक मुझे तो ये लग रहा है। इसका क्या रीजन है ना, देखो साइकोलॉजिस्ट जो थे ना ये जर्मन थे, ठीक है, तो उनकी जो पिक्चर्स की अडेप्टेशन है ना, पिक्चर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं ना वो यूरोपियंस को रिप्रेजेंट करती है, समझ रहे हो। तो जो हमें दिखाई जाएंगी पिक्चर्स वो अडेप्टेड होंगी अकॉर्डिंग टू इंडियंस, फाइन, बट सिमिलर लाइंस में होंगी, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो हमें जो इसके बीच का सेंट्रल आइडिया जो है ना वो ज्यादा समझने की जरूरत है ना, ठीक है। Sir, can we say कि girl is from a poor background and she is completing her studies and doing part-time job also, so that she will purchase the study material or take the coachings and then successfully complete her studies also. ओके, सर ये भी हो सकता है कि आप मेरे को ना पॉसिबल वो थीम्स मत दो, रुको। ये भी हो सकता है कि ऊपर ना हम फिर निकल जाएंगे एक अलग ही डायमेंशन में, है ना, डोरेमोन का एनीवेयर डोर खोल के, ठीक है, हम खुद पहुंच जाएंगे जहाँ पे सब, सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है। नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ बस, ठीक है, अगर हम फैक्टर्स की बात करें, ये पिक्चर क्या डिमांड कर रही है? फैक्टर 2 कि दैट सपोर्ट्स हर फैमिली। हाँ, वेरी नाइस। फैमिली वाले जो पर्सपेक्टिव है वो किसी ने अभी कंसिडर क्यों नहीं करा, है ना, जहाँ पे 2-3 लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। सो उनके बीच में डायनामिक्स क्या हैं, इंटरपर्सनल डायनामिक्स, उसको भी तो एड्रेस करो ना, ठीक है। अब यही गड़बड़ हो जाती है, एग्जैक्टली, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन एंड अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, right, does it take more priority than implementing something new, agriculture? किसकी ज्यादा वेटेज होगी आपके हिसाब से? family, sir. Like if the brother, this can be a brother and sister, and the woman standing in the left side can be the mother. They're taking over the responsibility of the farming father, and they are implementing to get more yield, and they're doing all of these things. Yield मान लो बढ़ भी नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, but you're taking responsibility, you're reducing their workload, right, you're sharing their responsibilities, ठीक है। सो बात सिमिलर है ना, कि मतलब आप यू हैव अ टेंडेंसी टू कोलैबोरेट, कोऑपरेट, ठीक है। फैक्टर 2 भर भर के निकलेगा सिंपली, राइट, ठीक है। अब उसमें मान लो कुछ इनोवेटिव करना है, वो बाद की बात है, अगर फीजिबल लगे तभी करो, अदरवाइज फैक्टर 2 टेक्स मोर प्रायोरिटी। So in the same picture, I have seen this picture earlier and I have written a story on this also. So I wrote that this girl is an agricultural student and she has done a research in sustainable agricultural practices, and she wants to implement that in her field and her village, fields around her village. So she talked to the village head and implemented the practices, and she also used her contacts to like directly connect them with suppliers and all these. So sir, that I think goes more towards the innovation type stories. इनोवेशन की तरफ जाता है, यस, बट प्रैक्टिकल कितना है वो सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा फारफेच लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, राइट, क्योंकि एग्रीकल्चर में, क्योंकि आपने फैक्टर 2 को इग्नोर करके आपने सीधा फैक्टर 1 पे गए हो, ठीक है। आप पहले फैक्टर 2 को एड्रेस करो, यार ये कंट्रीब्यूट करती थी डेली बेसिस पे, फाइन, अपने सुबह कॉलेज जाने से पहले ये सुबह फार्म्स पे अपने काम करके जाती थी, ठीक है, वहां पे जाती थी, तो ये एग्रीकल्चर रिलेटेड, ऑब्वियसली इसका, क्योंकि फैमिली एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है तो इसने एग्रीकल्चर चूज करा था, ये वो कुछ नया पढ़ रही थी, ठीक है। शाम को आके वो डिस्कस करती है फादर से, पहले सरपंच के पास नहीं जाओगे आप, पहले छोटे लेवल पे आइडिया एग्जीक्यूट होता है ना,
Yes, है sir. ना? हाँ, मैं बोलूँ कि आज से अग्निवीर में क्या हुआ? ठीक है, वही तो हुआ ना कि आज रात 12 बजे के बाद से 4 साल का हो जाएगा, राइट? You understand? So that is why you see the results. I mean, obviously it's a political debate, but I think it is one of the major factors why BJP lost its majority in UP. है Yes, sir, ना? it is. Yes, sir. है ना कि यार उसके बेसिस पे रिश्ते हो रहे थे। एनीवे, पॉइंट क्या है ना कुल मिला के, कि अगर हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को करना है तो पहले ये पूरे गांव में इम्प्लीमेंट करा देगी या फिर पहले अपने फील्ड्स पे इम्प्लीमेंट करके देगी कि कैसा रिजल्ट है ना? पहले वो करेगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट करा कि शी हेल्प्स फैमिली को कॉलेज जाने से पहले। कॉलेज में जाती है, एग्रीकल्चर पढ़ती है, आइडिया आता है, आगे घर पे इम्प्लीमेंट करती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, फैमिली इज हैप्पी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सर सेम स्टोरी में इन आउटकम वाला चीज वी कैन आल्सो एक लाइन ऐड कर सकते हैं ना कि अपने घर पे अच्छा रिजल्ट आने के बाद उसने सजेस्ट किया कि पूरे विलेज में कर सकते हैं, तो फॉर हाँ, वो बाद की बात है, बट ऑल्टरनेटिव थीम्स तो बहुत हो सकते हैं। देयर कैन बी अ प्लेथोरा ऑफ थीम्स। ठीक है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर कि डूइंग Yes, sir. जस्टिस टू फैक्टर 2 Hmm. is important. So I understood that part, like the factor 2 part, but I have like a small doubt apart from that. जैसे कि if I'm from an urban background and my PIQ says that I'm from an urban background, हाँ, they know for sure that I've not seen a farm in my life. okay. And if I'm writing a story about a farm, how relevant is that? Or like, जैसे कि in my previous SSB, I got 3 pictures where farms were there. Okay. And I wrote 3 farm stories. But I don't know how relevant that is or not. यार रेलेवेंस इसके बेसिस पे डिसाइड होता है ना। सी लाइक आई सेड कि इनोवेशन जो है ना, इनोवेशन भी हटाओ चलो, फॉर एग्जांपल, है ना, इमोशंस जो है, इमोशंस आर मोर इम्पोर्टेंट एंड कैप्चरिंग द इमोशन बीइंग कन्वेड इन द पिक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सेंट्रल आइडिया क्या है वो आप समझो। ठीक है, फिर आप रिलेट करो सेंट्रल आइडिया पिक्चर का क्या है, राइट? Yes, right now it is that empathy part, like how I told the story. Factor और 2 मैं है farm ना। लिखूँ तो it will, Do if you I don't have write do you farm, have it an will feel extended like I'm running family? away from the Do you have picture. an extended family? नहीं, it's just us over here in Bangalore. ठीक है, ओके फाइन। मतलब कभी ऐसा तो नहीं होगा कि किसी ने अपनी जिंदगी में कभी खेतों का नाम नहीं सुना, मतलब कभी ना कभी किसी ने सुना होगा, तो वी कैन रिलेट दैट पिक्चर। ठीक है, और मे बी अब आप मान के चल रहे हो कि लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर फैक्टर 2, आपको पता चल गया फैक्टर 2 की डिमांड है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में पहले फिर यू ट्राई एंड डिस्प्ले दैट सोशल कोऑपरेशन, social adaptability or sense of responsibility. ठीक है, so let's say for example if you go from this perspective, right? So she has seen as a child, she grew up seeing the farmers, right? Maybe let's say, ठीक है, and she knows, or maybe through news she has been sensitized towards the needs of the farmers. ठीक है, and as she was pursuing BSc agriculture, so she felt as if it was her duty to bring about a change from at the grassroots level. ठीक है, so she approached some local farmers, right? And she tried to understand their plight. She would note down what problems they are facing on the ground. ठीक है, and what are the possible solutions in theory, right? Basically, the factor 2 part should be highlighted no matter what the background is. Like if it has to be innovative, I can even write वो hyperpure वाला example, like so you can get whatever. Like बहुत सारी आ जाती है sir innovative में, but I figured that empathy part should always come first. Exactly. Okay. ठीक है, factor 2 should be take priority. Fine. अगर आप relate नहीं कर पा रहे हो, but still you can still express emotional this thing, right? Sir, so in this kind of photo where multiple people are present, we can see more than 2, 3, or 4 persons in the photo.
Is this a correct generalization that the focus of that picture is towards the factor 2, the sense of Yes, responsibility? exactly my point, right? Great, good deduction, right? This is what it's about, है ना, कि आप कैरेक्टर्स जो है, आप कैरेक्टर्स को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, यू नॉट एक्सप्रेसिंग एम्पैथी, राइट, एंड देन यू वांट टू राइट अ गुड स्टोरी, नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जरा इंटरप्रिटेशन देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। ओके, दिस इज द ओनली कार्ड इन द सीरीज दैट प्रेजेंट्स द ग्रुप सीन and gives information relating to how the individual deals with challenge of people living together, ठीक है। तो even if you write श्रीश वो वाले पर्सपेक्टिव से कि ये फैमिली है इसकी, तब भी चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? Absolutely. Because factor 2 takes priority, obviously. Factor 2 is the most important. देखो factor 2 और factor 4 जो होते हैं ना, ये untrainable होते हैं, ठीक है। Factor 2 is sense of responsibility, cooperation, adaptability, fine, social adaptability, and then courage and determination. Stamina. In factor 4, है ना। Stamina is trainable, है ना, हाँ. but courage and determination जो है ना, ये थोड़ा सा, determination is still semi trainable, but courage is not at all trainable, fine. तो ये जो है ना, ये 5 OLQs ये हमारी हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी लेती है। तो पिक्चर में अगर कभी आया कि ऐसी सिचुएशन है जिसकी करेज की डिमांड है, तो आप सबसे पहले वो मीट करोगे, For example, the drowning wala. है ना। यू विल हैव टू जंप इनटू द वाटर, Okay. फाइन। So up until now मैं एग्जाम दे रहा था बट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा था बेसिकली, है ना। यस, यू आर ट्राइंग टू गेट अराउंड इट। how factor 2 I was not putting in anywhere. ठीक है, यस, राइट। सिमिलरली फैक्टर 2 भी हमें जब जब पिक्चर में दिखाया गया, राइट, सो फैक्टर 2 वी हैव टू एड्रेस। हमारे एक्शंस जो है ना, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली, सॉरी डायरेक्टली तो कभी एक्सप्रेस मत करना कि ही वाज कोऑपरेटिंग विद एवरीवन इन ऑर्डर टू शो सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन ऑर्डर टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर सोसाइटी, है ना। ये 3 लिख दिए मैंने, ओ सर क्या बात है, OLQ सारे दे दिए, ठीक है। नहीं बोले ये कहाँ से सीख के आए ये, ठीक है, घोंचू राम। सर स्टोरीज असेस करने के लिए बुला भी लेंगे साथ में। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ना। एंड इसके आगे की जो है ना पिक्चर्स, मैं कल हम वहाँ से रिज्यूम करेंगे। दिस इज टुडेज थॉट, राइट, एंड आई विल लीव यू ऑन दिस नोट टू प्रोसेस, राइट, एंड कम अप विद मोर डाउट्स टुमारो। सर यस्टरडे आप बोल रहे थे कुछ रीडिंग असाइनमेंट या कुछ के लिए मे बी, तो वो आप देने वाले हैं? मैस्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स ही पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, जो नवनीत करके आया आज, राइट। सो आप नवनीत नहीं, शायद नीरज था ना, आई थिंक नीरज ने पढ़ा, हाँ नीरज ने पढ़ा था, आई थिंक, यस Yes, sir. है ना, ठीक है, फाइन। So So then I आप think we should like make it a habit that whatever picture we see, we have to assess what OLQ is asked out of that picture every time. यस, डिमांड आपको तभी समझ में आएगी। That's when we are writing also it will come कि ये OLQ दिखाना है. Otherwise we'll all be thinking कि जो भी आ रहा है मन में लिख देते हैं. आई मीन यू नो XYZ डायरेक्शन में चले जाएगा, बट आप व्हेन यू नो यार फैक्टर 2 हमें कोऑपरेशन दिखाना है, तो आपके एक्शंस भी उसी हिसाब से आएंगे ना। ही टुक इनटू कंसिडरेशन अदर्स पर्सपेक्टिव्स, राइट, एंड ही मेड एवरीवन अग्रीड, फाइन, और ही कम्युनिकेटेड टू एवरीवन हिज पर्सपेक्टिव, अंडरस्टूड देयर्स, फाइन, दिस इज कोऑपरेशन। सर कुछ ये जो OLQs आइडेंटिफाई करने वाला पॉइंट है, उसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि जो चार्ट वाला चीज़ आई मेंशन ना, उसको करने के बाद एक चीज़ में हेल्प हुई है कि जब भी पिक्चर्स आती हैं, अगर मतलब जैसे कि गर्ल्स में न्यूट्रल पिक्चर्स बहुत सारी आती हैं, तो फॉर एग्जांपल 2 लोग बैठे हुए हैं एंड इट सीम्स लाइक कि पेरेंट्स हैं, तो वहाँ पे मतलब अब आइडेंटिफिकेशन इतना होने लगा है कि यहाँ पे बेसिकली थॉट एंड इमोशंस वाला पार्ट ज़्यादा आएगा, फैमिली के साथ कोऑपरेट करना है। और अगर कोई स्पोर्ट्स की है तो लगता है कि हाँ यहाँ पे डिटर्मिनेशन, करेज, ये सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। हाँ, है ना, टीम वर्क, डिटर्मिनेशन, ये सब चीजें, यस डेफिनेटली, है ना। बात करेंगे क्लास 3 में, बात करेंगे, ठीक है।
उसके बारे में अनिकेत, ठीक है? यस आर्यन बता। एक डाउट ये था कि जैसे फर्स्ट डे आपने टेस्ट किया था तो उसमें एक पिक्चर थी कि एक लड़का बैठा है और उसके सामने मैंने एज्यूम किया था उसके फादर बैठे हैं चेयर पे, साइड में बुक भी थी, एक गिलास भी रखा था फैंसी सा, और चश्मे थे, और लड़का जो है ना पैर के ऊपर पैर करके बैठा है। तो मतलब इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फैक्टर उसमें हमें वो करना चाहिए हाईलाइट? कल वाली क्लास तक वेट कर ले, ठीक है? एक इमेज इसमें हमें पीडीएफ में एक ऐसी इमेज हम देखेंगे जिससे ये बात भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलिए फाइन गाइस। सो